Glory, 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 hallelujah. Heavenly Father, one more time, Lord, we come to you. स्वर्गीय पिता, फिर से एक बार हम आपके सम्मुख में आते हैं। Thank you, Jesus, for your wonderful presence in this place. धन्यवाद आपकी अद्भुत उपस्थिति के लिए इस जगह पर। We rebuke every obstacle right now in the name of Jesus. यीशु के नाम में सारी रुकावटों को हम झिड़कते। We speak. The power of Holy Spirit shall flow in this place. परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ को इस जगह पर हम बोलते हैं। Speak to your people. आपके लोगों से बातें कीजिए। Reveal your deeper things, Lord. आपके गहराई वाली बातों को प्रकट कीजिए। Speak to your people. आपके लोगों से बातें कीजिए। We rebuke every work of devil right now in the name of Jesus. शैतान के सारे कामों को हम झिड़कते यीशु के नाम में। Thank you, Master, for your mighty धन्यवाद work in this place. आपके अद्भुत उपस्थिति के लिए जगह पर। Lord, we pray. परमेश्वर प्रार्थना करते हैं। We know, Lord, lips are mine, but every word is coming from heaven. हम जानते पिता, होठ तो मेरे हैं, परंतु सारे शब्द जो स्वर्ग से उतर कर आ रहे हैं। Lord, speak to your people. परमेश्वर आपके लोगों से बातें We कीजिए। give you all the glory and honor today. सारी महिमा गौरव आप ही के नाम को देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. बोले यीशु मसीह की जय। So two different forces we have seen. तो दो ऐसे अलग प्रकार के सामर्थ को हमने देखा है। We have angels. हमने देखा स्वर्गदूत, Always they are here to help you. और हमेशा यहाँ पर मौजूद होते हैं आपके मदद के They लिए। worship Lord. और वो परमेश्वर की आराधना करते They हैं। come and help you. वो आकर आपकी मदद करते हैं। Whenever you need, they can come and help you. और जब भी आपकी जरूरत पड़े, उनकी जरूरत आपको पड़ेगी, वो आकर आपको मदद करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Angels, they enjoy helping you. स्वर्गदूत आनंदित होते हैं आपको मदद करने के They are लिए। the co-worker in the kingdom of God. और परमेश्वर के राज्य में वो सहकर्मी हैं। And other final spirits we are seeing, and those are the evil spirits. और दूसरी आत्माओं को हमने देखा है, वो है दुष्ट आत्माएं। So many things are there. Just we have took just glimpse of few things. और बहुत सारी बातें हैं ऐसे, पर थोड़ी-थोड़ी बातों को हमने जमा करके सुना है। Amen. Hallelujah. Amen. So how the devil came to the world? कैसे शैतान इस दुनिया में आया, How the evil spirits they came to this world? कैसे दुष्ट आत्माएं इस दुनिया में आए। And now there is a big battle among you and the spirits of the evil. और आपके बीच में और दुष्ट आत्माओं के बीच में एक बड़ा युद्ध है। Hallelujah. Praise the Lord. So many a times we heard about the spiritual warfare. बहुत बार हमने सुना है आत्मिक युद्ध के बारे में। Hallelujah. हालेलुया। I will put these things in different angle. और ये सारी बातों को मैं दूसरे आकार में पेश करता हूँ। Can you say amen to that? आमीन कहोगे इस बात पे? Hallelujah. हालेलुया। The people, those who struggle with their sins every day, जो लोग पाप से जूझते हैं हर रोज, always they talk about the devil. हर बार वो शैतान के बारे में बात करते I हैं। have seen some people, they talk less about Jesus and more about devil. मैंने ऐसे लोगों से भी मिला है कि जो यीशु मसीह के बारे में कम बात करते हैं, परंतु शैतान के बारे में बहुत बात करते हैं। Always here they see devil, there devil, devil, everywhere devil. हर बार हर क्षण में वो कहते हैं यहाँ शैतान, वहाँ शैतान, वहाँ शैतान, यहाँ शैतान। Whatever may happen, they will put that bill on the name of devil. कुछ भी हो जाए तो सारा बिल डेविल के नाम पे ही फाड़ते हैं। Always the some people they talk about evil spirits. हर बार वो दुष्ट आत्माओं के बारे में ही बात करते But हैं। it is not, it should not be like that. पर ऐसा होना तो नहीं चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। Are you here, church? आप यहाँ पर हो कलीसिया? Are you listening carefully? क्या आप ध्यान से सुन रहे हो? Listen carefully. ध्यान से सुनिए। This is a spiritual battle, I know. तो ये आत्मिक युद्ध है, मुझे पता है। So you have to win this battle all the time. और ये युद्ध को हमेशा हमें जीतना है। बोले यीशु मसीह की जय। Yes. In this battle, इस युद्ध में if you want to gain victory, you need to do few things. अगर आपको विजय प्राप्त करना है इस युद्ध में, तो आपको कुछ काम करने जरूरी है। I will tell you three things. 3 बातें मैं जरूर बताऊंगा। Before telling everything, I would like to tell you one. और ये सारी बातें बताने से पहले मैं एक चीज आपको As I बताऊंगा। told you yesterday, if I will teach you this, you will never read any spiritual warfare book. जैसे मैंने कल
कल ही ये बात बताया है, अगर ये सारी बातें मैं बता दूं तो आपको कोई भी युद्ध की किताब पढ़ने की जरूरत पडेगी नहीं. हालेलुया. हालेलुया. आत्मिक युद्ध कसं लढायचं, आत्मिक युद्धात कसं उतरायचं, आत्मिक युद्ध काय करायचं, हे सगळं तुम्ही सगळ्या झंझट मधून बाहेर पडणार. यीशु मसीह की आत्मिक युद्ध कैसे लड़े, आत्मिक युद्ध कैसे जीते, आत्मिक युद्ध कैसे करें, इन सारे झंझटों में पड़ोगे ही नहीं, इन सभी झंझटों से बाहर आ जाओगे. Can you say amen to that? Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Israelites, they came out of the Egypt. इजराइल जो लोग हैं वो मिस्र से बाहर आए. Now they're walking. अब वो चल रहे. They reached Red Sea. वो लाल समुद्र के पास पहुंच Red Sea गए in the front of their eyes. और लाल समुद्र उनके आंखें सामने है. At one hand side, और दूसरी तरफ they saw mountains. वो पहाड़ों को देखे. On the other side, mountains. दूसरी तरफ देखे वो पहाड़ है. They're walking. They're seeing the Red Sea. वो चल रहे और देखा कि आगे लाल समुद्र है. Mountains. पहाड़. But when they looked back, जब वो पीछे मुड़कर देखे, army of Pharaoh फिरौन की सेना is coming to kill them. और उन्हें मारने के लिए आ रही So है. what to do? तो क्या करें? We cannot climb the mountain. हम तो पहाड़ भी नहीं चढ़ सकते. We cannot fight these people. They are coming with swords. और जो तलवारों से सेना आ रही है हम उनसे भी नहीं They लड़ are coming सकते. with weapons. और वो हथियारों के साथ They आए हैं. have children and families with us. पर यहाँ पर हमारे साथ बाल बच्चे हैं. Lord, परिवार where है. we can go? और परमेश्वर कहाँ नहीं जा सकते. Even if we will go towards the sea, अगर हम समुद्र के करीब भी जाए तो everybody will drown and die. और सभी लोग डूब जाएंगे और मर जाएंगे. They were surrounded by the problems. और मुश्किलों से घेरे हुए हैं. And Moses, he prayed. और मूसा ने प्रार्थना की. God answered the prayer of Moses. परमेश्वर ने मूसा की प्रार्थना की उत्तर दी. And that day, और उस दिन God divided Red Sea into two parts. परमेश्वर ने उस लाल समुद्र को दो भाग कर दिया. God made a way परमेश्वर ने रास्ता को तैयार when किया. there is no way. जहाँ पर कोई रास्ता ही नहीं था. My God makes a way for your life. मेरा परमेश्वर तुम्हारे जीवन के लिए रास्ता तैयार That's करेगा. right. इसीलिए He is a miracle working God. वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर है. When somebody tells you जब कोई आपसे कहता है there is no way out, कोई रास्ता नहीं है, you will never come out of this situation. तुम इस परिस्थिति से कभी बाहर ही नहीं आ Tell सकते. your enemy, आपके दुश्मन से कह दो. my God is a God who makes a way from the Red Sea. आपके दुश्मन से कह दो कि मेरा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो My लाल समुद्र God से is रास्ता a तैयार living करेगा. God. मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है. One thing I will tell you, एक बात मैं आपको बता दूं. Moses, he divided Red Sea into two parts. और मूसा ने जो लाल समुद्र को दो भाग किया. Hallelujah. मोशेने नुसता समुद्र फाडला और मूसा ने तो सिर्फ लाल समुद्र को फाड़ दिया आणि रस्ता केला. और रास्ता तैयार किया. पण माझ्या येशूने क्रूसावरती स्वतःच्या चिंधड्या होऊ दिल्या. और मेरे यीशु ने तो खुद के छितरे फाड़ दिए और सबको बचा लिया. स्वर्गाचा रस्ता त्याने आम्हाला स्वर्ग का रास्ता तैयार किया. हालेलुया. नांगराने जशी जमीन नांगरावी अशी त्याची पाठ पूर्णपणे नांगरल्यासारखी झाली होती. जैसे हल चलाते वो खेती की मट्टी फाड़ देती है, वैसे यीशु मसीह के शरीर को फाड़ा गया क्रूस के ऊपर. माझा येशू स्वर्गाची वाट आहे. और मेरा यीशु जो है स्वर्ग का रास्ता है. जिथं कोणी नाही येणार जहाँ कोई नहीं जा सकता, तिथे माझा येशू घेऊन जाणार. वहाँ पर मेरा यीशु लेकर जा सकता तो है. जिवंत आहे. वो जिंदा है. तो मार्ग काढणार आहे. वो रास्ता निकालने वाला है. बोले यीशु मसीह की जय. हालेलुया. हालेलुया. Before dividing that Red Sea into two parts, लाल समुद्र को दो भाग करने से पहले God said to His people, और परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा, stay calm, चुप रहो, शांत रहो. खामोश हो जाओ. God will fight for you. परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा. हालेलुया. ज्या युद्धात जिस युद्ध में मी रोज हारत होतो, मैं हर रोज हार जाता था, ज्या युद्धामध्ये जिस युद्ध में मी रोज हारत होतो, मैं हर रोज हार जाता था, ते युद्ध मी येशूच्या हाती देऊन टाकले. मैं वो युद्ध यीशु के हाथ में दे चुका. आता मी रोज जिंकतो. अभी मैं रोज जीतता हूँ. Amen. आता मला हरवण्याची ताकद कोणाच्याच बापामध्ये नाही. अभी मुझे हराने की ताकत किसी के बाप में नहीं, कारण आता हे युद्ध माझं नाही, हे युद्ध माझ्या देवाचं क्योंकि आहे. अभी ये युद्ध मेरा नहीं, This मेरे battle परमेश्वर का है. belongs to my Lord. ये युद्ध जो है वो मेरे परमेश्वर का I है. will not fight. मैं नहीं लड़ूंगा. My God will fight on behalf of me. मेरा परमेश्वर लड़ेगा मेरे गैर मौजूदगी Can you में. say amen to that? आमीन कह सकते हो. Hallelujah. हालेलुया.
When the devil comes, जब शैतान आता है he will stand before you. वो आपके सामने खड़ा होगा. Hallelujah. Hallelujah. But do you know one thing? पर आपको पता है एक बात, Hallelujah. Because brother, come here, stand here. विकास ब्रदर यहाँ खड़े हो जाओ. Hallelujah. He is a believer. ये विश्वासी है. Do you know he is a believer? आपको पता है ये विश्वासी है. दोन विकास आल्यावर असा विकास होतो समाजाचा. Hallelujah. दो विकास मिल जाए तो समाज के विकास हो जाती है. He is a believer. ये विश्वासी है. Devil comes and stand in front of him. शैतान उनके सामने आके खड़ा हो जाएगा. काय रे विकास तुला बघतो आता. ये विकास मैं अभी तुझे देख लूंगा. आता तुला मारतोच. अभी मैं तुझे मारूंगा ही. सैतान मारायला येतो. शैतान यीशु मध्ये येऊन उभा राहतो. यीशु बीच में आके खड़ा होता है. Are you getting church? समझ में आ रहा है क्या? पण विकास एकटाच भांडायला गेला. पर विकास अकेला अगर लड़ने चला गया येशूला सोडून, यीशु को छोड़कर, मग काय खरं? फिर क्या खैर नहीं. हालेलुया. कुणाला घेऊन जायचं? किसको लेके जाना है? आपल्या बापाला घेऊन जायचं. अपने बाप को लेकर जाना कारण है. आपला बाप सगळ्यांचा बाप आहे. अपना बाप जो है सबका बाप है. आपला बाप सगळ्यात मोठा बाप आहे. अपना बाप जो है सबसे बड़ा बाप है. आपल्या बापा पुढे कोणाचाच बाप उभा राहत नाही. आपला बाप, अपने बाप के सामने कोई बाप खड़ा नहीं हो सकता. आपला बाप आणि निराळी छाप. हालेलुया. Praise the Lord. Nobody stand. अपने बाप निराले छाप. Hallelujah. Nobody can stand in front of my Father. कोई भी मेरे बाप के सामने खड़ा नहीं हो My सकता. heavenly Father is so strong and so मेरा स्वर्गीय powerful. पिता इतना सामर्थ्यशाली शक्तिमान है. When He fights, जब वो लड़ता है, Hallelujah. Just He will do like this. सिर्फ ऐसे ही कर दे तो हे लाखो करोड आले तरी लाखों करोड़ फूक में ही चले जाएंगे. आणि ख्रिश्चन लोक घाबरतात. तिकडून दोन दुष्ट आत्मे आले, तिकडून अरे हट हट. काय फालतूगिरी आहे. और मसीह लोग तो डर जाते हैं कि दो उधर से आ रहे हैं. क्या तिकडून फालतू भूत आलं आणि तिकडून हे आलं आणि तिकडून ते आलं. तू चाललं तर ते पळून जातात. वो मसीह लोग डर जाते हैं कि उधर से भूत आया, इधर से ये आया. क्यों चलेगा तो वो डर के भाग जाएंगे. Hallelujah. हालेलुया. Can we clap for Him? इनके लिए ताली बजा सकते हैं. Hallelujah. In between Him and David, who is there? इनके बीच में और शैतान के बीच में कौन है? पक्का पक्का? बसू शकता. थँक यू सो मच. ऐका सुनिए. आता ऐका. Now you have to do one thing. अभी आपको एक काम करना है. If Jesus is standing here, अब यीशु मसीह यहाँ खड़ा है I am here, और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ. and now the devil is there. अभी शैतान यहाँ पर है Devil is challenging me. और डेविल जो है चुनौती दे रहा है. एक काम करायचं. तो एक काम करना है. असं बाहेर यायची एक टपली द्यायची सगळ्यांना. असं द्यायचं. बाहर आकर सगळ्यांनी असं उसके करा. सिर पे उसके एक टपली मारना है. ठक करो ऐसे ठक. करा बरोबर. फट. फट. असं फट करायचं, मागे होऊन टाकायचं. ऐसे उसके सिर पे टपली मारना है और यीशु के पीछे जाके छुप जाना है. यीशु के पीछे खड़े रह के लाते मारो, मुक्के मारो, कुछ भी करो, छुप जाओ यीशु के पीछे. Keep doing this every day. ये रोज करते रहो. This is the spiritual battle. ये है आत्मिक युद्ध. काय लोक ओव्हर कॉन्फिडन्स मध्ये असतात. सैतान माझं काय नाही करू शकत. कुछ लोग कुछ ज्यादा ही विश्वास से भरे हुए होते हैं. सैतान तुला चॅलेंज करतो मी. शैतान मैं तुझे चुनौती देता हूँ. हिम्मत असेल तर असं कर, तसं कर, हे कर, ते कर. हिम्मत रहेगा तो ऐसा कर, वैसा कर. नंतर मग ब्रेक डान्स. बाद में फिर उसका खुद का ब्रेक डांस चालू हो जाता है. ब्रेक डान्स. सैतानाने ब्रेक केला, आता डान्स करतो. शैतान ने उसको ब्रेक कर दिया. ब्रेक यानी तोड़ना, और टूटा हुआ डांस चालू हो जाता है. फिर येशूला जीवनातून कधीच वगळू नका. यीशु को अपने जीवन में से कभी भी दूर ना करे. सैनिकांनो धैर्य धरा युद्धाच्या स्थळी. पहा पुढे चाले तुमचा ख्रिस्त महावीर. सैनिकों अपने से परमेश्वर को जानो. देखो अपना शूरवीर हमारे आगे आगे चल रहा है. हालेलुया. स्टेरिंग तुमच्या हातात आहे. ऍक्सिडेंट होणार. स्टेरिंग एकदा येशूच्या हातात देऊन बघा.
गाड़ी की जो स्टीयरिंग होती है वो आपके हाथों में होगी तो एक्सीडेंट जरूर होगी। अगर उस गाड़ी की स्टीयरिंग अगर आप यीशु के हाथ में देते हो तो उसका एक्सीडेंट कभी नहीं होगा। युद्ध तुम्ही लढणार तर नाही जिंकणार, युद्ध त्याला देऊन टाका, तुम्ही 100% जिंकणार। आप युद्ध लड़ोगे तो आप जरूर हारोगे, परंतु युद्ध जो है वो परमेश्वर के हाथ में सौंप दो तो आपकी जीत अवश्य होगी। Can you say amen? Amen. Hallelujah. Praise the Lord. If he is fighting for us, और वो हमारे लिए लड़ रहा है, there is no need to afraid of anything. तो किसी बात की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। हालेलुया। तुमच्या बाजूने लढणारा एवढा खतरनाक आहे, तुम्हारे तरफ से लड़ने वाला इतना खतरनाक है। हालेलुया। एक one picture was very popular these days. Many people they were keeping this picture on their display. और एक पिक्चर ऐसा था, मूवी है जो बहुत फेमस, एक चित्र ऐसा है जो बहुत फेमस हो गया और कुछ लोग अपने फोन के डिस्प्ले में भी रखते हैं। बघितलं असेल असं येशू ख्रिस्त आणि सैतानाचा पंजा लढवतो, बघितलं ते चित्र? ऐसा येशू और शैतान का पंजा लड़ते येशू हुए। ख्रिस्त एकदम पॉवरफुल दाखवलाय सैताना बरोबर। फालतू चित्र आहे, फालतू चित्र भंगार चित्र आहे, ते डिस्प्लेला ठेवू नका, कारण माझ्या येशूच्या हातामध्ये, प्रभूच्या हातात हात घेऊन लढण्याची सैतानाची लायकी पण नाहीये। चित्र भंगार आहे। मेरे परमेश्वर को शैतान हाथ में हाथ डालकर खड़े रहने की उसकी लायक भी नहीं है। डिलीट कर दो वो चित्र को। हालेलुया। काय तो सैतान येशूवर पंजा लढवणार? शैतान परमेश्वर के साथ पंजा लड़ा सकता है? एकदा नुसता जवळ यायचा प्रयत्न केला तर तेव्हा डोकं ठेचलं। एक बार आता जर नाटक केला ना 1000 जेल मध्ये टाकणार, 1000 वर्ष। हालेलुया। थोड़ा नजदीक आने की कोशिश की तो सिर को ही कुचल दिया, और अगर फिर से आने की कोशिश किया तो 1000 साल तक उसे जेल की बंदी में बांधा रहेगा। जे लोक बाईक चालवतात ना, त्यांची गाडी कधी स्लिप झाली समजा अशाच्या टर्न वरती, एक ठिकाणी कुठेतरी पनवेल मधला एक स्पॉट सांगा, स्टँडच्या जवळ एक ठिकाणी कुठेतरी एखाद्याची बाईक स्लिप झाली पडली। बाइक चलाने वालों को पता होता है कि जब कोई बाइक चलाता है और टर्न मारते हुए कोई बाइक स्लिप हो जाती है इस तरह से, आणि तो पडतो, मग जरा थोडंसं खरचटतं हे ते, पण त्या रस्त्यावरून जाताना नेहमी आठवतो, अरे अरे तू पडलो होतो, थोडं हळू जाऊया। यस, और तभी उस व्यक्ति को पता चलता है कि हाँ यहाँ तो मैं गिर गया था, फिर उसे याद होता है हाँ मैं यहाँ गिर गया था। जिथं ऍक्सिडेंट झालाय किंवा जिथं माणूस घसरून पडलाय त्याने किती वर्ष त्या रस्त्याने आला गेला, दरवेळी त्याला आठवते इथं पडलो होतो, कितने भी साल इथं पडलो होतो बरं का, उस जगह से वो गुजरता है तो उसे याद आता है कि हाँ मैं इधर इथून आता हळूच जायची, इथं पडलो होतो बरं का, 20 वर्षापूर्वी पडलो होतो बरं का, त्याला ते आठवत राहतं। 20 साल पहले मैं यहाँ गिरा था, धीरे से जाना है ना, ऐसे याद आएगा ही उसे। येशूचं नाव घेतलं सैतानाला आठवतो, याने डोकं फोडलं होतं बरं का, याने फटके दिले होते बरं का, याने तुडवलं होतं बरं का, याने आमचं साम्राज्य कोसळवलं होतं बरं का। यीशु का नाम लेते ही शैतान को याद आ जाता है कि हाँ इसने मुझे मारा था, इसने मेरे सिर को कुचला था, इसने मुझे पूरी तरह से नाश किया था, मेरे साम्राज्य को नाश किया था, उसे वो याद आता है। Proclaim the name of Jesus. जैसे आप यीशु के नाम की घोषणा करते हो, You are reminding that evil one, उस दुष्ट को आप याद दिलाते हो, how my Jesus crushed your head, कैसे मेरे यीशु ने तेरे सिर को कुचला, how we are so victorious and powerful, हम कैसे विजयशाली और सामर्थ्यशाली है। Jesus, यीशु मागे जाऊ नका, और पीछे छुप जाना, येशू, यीशु त्याचा थरथर का, और फिर वो थरथराता है। हालेलुया। One night, Smith Wigglesworth, he was sleeping in his bedroom. एक रात स्मिथ विगलवर्थ सो रहे थे अपने रूम में, घराच्या एका कोपऱ्यात त्यांचा बेड आहे आणि त्याच्यावर झोपले, एक कोने कोपरे में उनका बेड था, वहां पर वो सोए थे, ऐसे धार्मिक खर्राटे खूप मार रहे आनंदात झोपतो, आमेन। थे। यस, धार्मिक बहुत आनंदित देवाचे लोक सोते हैं। आरामात झोपले पाहिजे, आराम से सोते हैं। किती लोक आमेन म्हणतील। येशू पण समुद्रात वादळ आहे, मच्छीमध्ये शांत झोपला, टेन्शनच्या काळात आरामशीर झोपता आलं पाहिजे। और यीशु मसीह जैसे तूफान के बीच में भी जहाज में सोया रहा, वैसे ही टेंशन के बीच में आराम से नींद आना सेम चाहिए। क्वालिटी पेत्राच्या लाईफ मध्ये, वही क्वालिटी हमें जेल मध्ये टाकलंय, जेलमध्ये जेल में डाला है, कभी खर्राटे मार रहे हैं। चर्च प्रार्थना करतोय, पेत्राला सोडव देवा, देवा पेत्राला बाहेर काढा, आपला पेत्र जेलमध्ये आरामशीर, आमेन। कलीसिया प्रार्थना कर रही है, रो रही कि परमेश्वर पतरस को बाहर निकालो, छुड़ाओ उसे, और पतरस है कि खर्राटे मारकर सो। Daniel is comfortable in the den of lion, but the king was restless for whole night. और डैनियल जो है सिंह के गुफा में इतने आराम से रह रहा था, परंतु जिस राजा ने उसे गुफा में डाला वो तो पूरा विचलित होकर रात भर सो ही नहीं पाया। Difficult situation मध्ये रिलॅक्स राहायला शिका, मुश्किल समय में एकदम आनंदित और रिलैक्स रहना
टेन्शन नाही, टेन्शन लेना नहीं, प्रॉब्लेम नाही. परिस्थिति नहीं. तुला काही टेन्शन येतं का नाही? तुझे कुछ समस्या टेंशन होता है कि नहीं? माझ्याकडे येशू आहे, मला बाकी काही नाही. मेरे पास यीशु है, मुझे तो कुछ नहीं होता. आय हॅव जीसस. मेरे पास यीशु है. काय मोठा माणूस आहे. कैसा उद्या घराचं भाडं भरायचं, 1 रुपया खिशात नाही, काय टेन्शन आहे की नाही? कल भाड़ा भरना है, खिसे में 1 रुपया नहीं है, कुछ टेंशन है कि नहीं तुझे? टेन्शन नाहीये, येशू आहे. टेंशन नहीं है, यीशु है. भाडं माझ्या घराचं नाही. भाड़ा मेरे घर का नहीं. घरात आलो त्याच दिवशी येशूला देऊन टाकलंय घर. त्याला भरायचं तर तो भरेल. ऐसा डरता है तो यीशु के आपको सौंप दिया, वो भर देगा मेरा भाड़ा. एवढा विश्वास दाखवला ना प्रभू म्हणून हा असं करून करून मला नुसतं कामाला लावत, याला स्वतःचं घर देऊन टाका. परमेश्वर बोलेगा, मैं इतना विश्वास दिखा रहा है, तो इस विश्वास के द्वारा मुझे टेंशन हो रहा है, क्यों ना मैं मुझे इसे खुद काम का पे घर लगा दे. देगा, मुझे काम पे हर महीने इसको पैसा दो, भर उधर पैसा दो, एक बार ही दे देता हूँ, एक बार घर ले ले. Amen. बोले यीशु मसीह के रिलैक्स. हालेलुया. हालेलुया. Be relaxed in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में. Hallelujah. My dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाई बहनों, during the time of your difficulties, आपके परिस्थिति के समय hallelujah, Jesus is quietly resting. और यीशु मसीह जो है शांत रीति से आराम कर रहा है. Peter is taking rest. और पतरस भी आराम कर रहा है. Hallelujah. We should have this quality. हमारे अंदर भी ये क्वालिटी होनी चाहिए. Hallelujah. Even the difficult situation you will face, अगर मुश्किल समय आया तो भी problems will come. समस्या आएगी. Don't worry about anything. चिंता ना करें किसी बात When you know your God is with you, और आपको जब पता चलता है कि आपका परमेश्वर आपके साथ है, they will try to put you in trouble. और शैतान चाहेगा कि आपको वो परिस्थिति में डाले. But during the time of your trouble, आपके समस्या के समय remind him उसे who याद is with दिलाओ you. कि कौन आपके साथ है. So the Smith-Wigglesworth, he was sleeping in the night. उसमें विगलवर्स वो रात को सो रहा था. Suddenly he heard a noise, karr, 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 something like this. तुरंत उसने आवाज सुनी रात को कर कर करके. सैतान आला शैतान आया आणि त्याचा बेड धक्का मारून दुसऱ्या कोपऱ्यात घेऊन गेला. और बेड जो है धक्का मारकर दूसरी तरफ लेकर गया. दुसऱ्या कोपऱ्यात नेऊन बेड ठेवला. दूसरे कोपरे में लेकर जाके उसके बेड को रख दिया. स्मिथ-विगलवर्सला ते कर्कूर आवाजाने जाग आली. और उस कर्कूर आवाज से स्मिथ विगलवर्स को जाग आई. डोळे उघडून बघतो तर सैतान उभा. तो आंखें खोल के देखते तो शैतान सामने खड़ा है. ते म्हटले तू आहेस होय. तो उन्होंने देखा हे काय केलं? हे काय केलं? ये क्या किया? बेड परत तिथे ठेव. ये बेड भी उठा के उधर रख दे. परत ते झोपले. फिर से सो गया. सकाळी झोपेतून उठले ना, बेड परत त्या जागेवर होता. सुबह उठकर देखा तो बेड वहीं पर था अपने जगह पर जहाँ होना चाहिए. हालेलुया. बोला यीशु मसीह की. एकदा एक आजीबाईला खूप भूक लागली. एक बूढ़ी औरत को भूख लगाई. She prayed to the Lord, God give me food, God give me food. उन्होंने प्रार्थना किया, परमेश्वर मुझे खाना दो, परमेश्वर मुझे सैतान खाना जवळच दो. होता. और शैतान वहीं पर खड़ा था. आता जीवला 5 स्टार हॉटेलचं जेवण देतो. अभी मैं इसको 5 स्टार का खाना तिला दूंगा सांगणारच नाही मी सैतान आहे. और मैं इसको बोलूंगा ही नहीं कि मैं शैतान हूँ. त्यांनी जाऊन पैसे कुठून चोरून बिरून खर्च करून काय करून जेवण घेऊन आला. एकदम हायफाय जेवण. और कहीं से उसने पैसे विसे चुरा के उसको हाई फाई खाना लेकर दिया. आजीबाई अज्जीबाई तुझ्यासाठी जेवण आणलंय. तेरे लिए खाना लाया. हे घे खा जेवण. ये ले खा खा. ती म्हणते अरे बापरे मी भुकेली होती, बरं झालं जेवण. और उसने कहा क्या ये अच्छा हो गया मैं भूखी थी, मेरे लिए खाना लाया. गुलाबजाम बिर्याणी जे गुलाबजाम, पाहिजे ते बिर्याणी. धाड धाड भातारी जो फुल चाहिए जेवले. वो पूरा पेट भर कर खाना हा है. जेवले बाई. अभी मैं पूर्ण मोठं पूरा पूर्ण खाना पोट खाया. भरलं माझं. अरे बाबा छान. मेरा पेट भर चुका है. बहुत अच्छा असं खाना. सैतान म्हटला हिला सांगूया मी कोण आहे. अभी मैं बताऊंगा उसे मैं कौन हूँ. सैतान म्हटला आजीबाई तुला माहित आहे का मी कोण आहे. शैतान बोला अज्जीबाई मुझे पता है कि मैं कौन हूँ. म्हातारी म्हटली कुणी पण असू दे. ऐका 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 म्हातारी काय म्हटली. बुड्ढी बोली कि मुझे क्या पता, कोई भी होने दो, कोणी पण असू दे. कोई भी रहने दो. माझ्या देवाची इच्छा असेल ना, त्या सैतानाला झुकवलं, त्याला पण जेवण आणायला लावलं, त्याला वेटर बनवलं. शैतान को भी वेटर बना देगा, खाना बनवाएगा मेरे सामने. माझा देव सैतानाला पण वेटर बनवेल. और मेरा परमेश्वर जो है मेरे लिए शैतान को भी वेटर बना देगा. तो मला बनवलं. तो बना. हालेलुया. हालेलुया. Name of Jesus is very powerful. यीशु का नाम जो है वो बहुत सामर्थ्यशाली है. No need to get afraid of all demonic spirits. सारे दुष्ट आत्माओं से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है. No need to afraid of any evil spirit.
कोई भी दुष्ट आत्माओं से डरने की जरूरत नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। Devil is afraid of you. शैतान खुद डरा हुआ है यीशु के नाम से। वो आपसे आप तुमच्याशी घाबरतो तुम्हाला बघून. वो आपको देखकर ही डर जाता है। सैतानाला कशाची भीती वाटते माहिती का? शैतान को किस बात का डर लगता गरजणारा है? सिंह आहे तो. वो गरजने वाला सिंह है। सिंहाला कसली भीती वाटते माहिती का? सिंह को किस बात का डर होता है पता है? त्या अशा अग्नीची भीती वाटते. आग का डर लगता है सिंह को। आग असली ना, जहाँ आग होती है ना, सिंह नाही येत तिकडे. वहाँ सिंह आता ही नहीं है। हालेलुया. हालेलुया। यहूदा वंशाचा सिंह वेगळा आहे. यहूदा तो का आग्नीतच उभा राहतो. यहूदा का गोत्र का सिंह वो अलग है, वो तो अग्नि में ही खड़ा होता है। हालेलुया. Praise the Lord. हा जो भुरटा सिंह आहे, और ये जो नकली सिंह है, हालेलुया, त्याला कशाची भीती वाटते? उसे किसकी डर लगती है? आग की। अग्नीची भीती वाटते. हालेलुया. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. त्याला सैतानाला कसली भीती वाटते? और शैतान को किसका डर लगता है? अग्नीची. आग का। एक बहीण माझ्याकडे आली एक बहन मेरे पास आई आणि मला बोलली, पास्टर प्रार्थना करा. और मुझे कहा पास्टर प्रार्थना कीजिए। बोललो कशासाठी करायचं? किस लिए करना है? ते सैतान असा फिरून येतो आणि माझ्या डोक्यावर बसतो. और शैतान ऐसे घूम कर आता है और मेरे सिर पर ही बैठ जाता है। सैतान असा फिरून येतो आणि कुठं बसतो? शैतान ऐसे घूम कर आता और कहाँ बैठता है? सिर पर। डोक्यावर बसतो. सिर पर बैठता है। काही लोक असं सांगतात सैतान एकदम डोक्यावर बसतो. कोई कुछ लोग ऐसे कहते हैं शैतान आता है मेरे सिर पर बैठ जाता है। सूल बघितली तुम्ही? सूल चूल चूल चूल्हा देखा है आपने? चुल्हा बघितला आहे का? बघितलाय? ती चूल आहे ना, लाकडं टाकले ना, आग पेटली ना, मच्छर बिच्छर कोणी जवळ येत नाही. और जो चूल्हा होता मास है येत नाही, झुरळ येत नाही, मुंग्या येत नाही, कोणी येत नाही. पण चूल एकदा विझली, माछा, मच्छर, झुरळ कोणी पण येणार तिकडे येऊन बसणार. जब चूल्हा जलाते हैं तो आग लगती है तो कोई भी मच्छर मक्खी वहां पर मंडराती नहीं है, परंतु जब वो बुझ जाता है तो सब कुछ वहां पर आ जाता है, मुंगी हो या मच्छर सब कुछ वहां पर आ जाता है। ज्यांच्या जीवनात देवाच्या आत्म्याची अग्नी नाही ना, जिसके- कोणी येऊन बसतं. जिसके जीवन में अग्नि नहीं है परमेश्वर का, तो उसके जीवन में कोई भी आके बस जाता है। If you don't have fire of Holy Spirit in you, अगर पवित्र आत्मा की आग आपके अंदर नहीं है तो evil spirit can come and stay. दुष्ट आत्मा तो आराम से आके रह सकता But है। once there is a fire of the Lord, और एक बार जब परमेश्वर की अग्नि आपके अंदर आती when है, you receive the Holy Spirit, जब आप पवित्र आत्मा को पा लेते हो, no evil spirit can come to you. कोई भी दुष्ट आत्मा आपके पास नहीं आ Every सकती। dark force will leave you. सारे अंधकार की शक्ति आपको छोड़कर दूर हो Every जाएगी। demonic force will run away from your सारे life. दुष्ट आत्मा के कार्य आपके जीवन को छोड़कर चली जाएगी। Receive that power of Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ को पालो। बोलो यीशु मसीह की। जय। So you are in this battlefield. तो आप इस युद्ध भूमि में हो। Many people they have made like this. If you will pray 3 hours in the morning, 2 hours in the afternoon, 3 hours in the evening, then only you will be able to fight with David. और कुछ लोगों ने ऐसे बना लिया है कि तुम सुबह के 3 घंटे, दोपहर को 2 घंटे, शाम को 3 घंटे ऐसे प्रार्थना करोगे तो ही आप शैतान को भगा सकते हो। Everything cannot happen by your prayers. सब कुछ आपके प्रार्थना के द्वारा नहीं हो सकता। Hallelujah. आज परत हेच वचन ऐकलं. काही पण करा, प्रार्थने होणार, प्रार्थने होणार, प्रार्थना. अभी तक तो आज ये तुम्हाला वेगळा संदेश देऊन जातो. प्रार्थनेने सगळे काम होणार नाही. आपने अभी तक तो यही सुना होगा, कुछ भी हो जाए प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। पर आज मैं कुछ अलग आपको सिखा के जा रहा हूँ कि प्रार्थना से ही सब कुछ नहीं हो सकता। पढ़ते आपको जम रहा है ये बात, हजम हो रही है? हजम हो रहा है, नहीं हो रहा है, 2 मिनट में हो जाएगा। आज बोला है मेरे पास, डोंट वरी, प्रेज द लॉर्ड। जॉन ब्रदर और मैं हम लोग समझो घूमने को गए। वी वेंट फॉर वन पिकनिक, ओके। जॉन ब्रदर और पास्टर विकास कांबळे वो एक पिकनिक पे गए। जस्ट वी आर मूविंग इन लोनावला खंडाला हिल साइड। लोनावला खंडाला पहाड़ी इलाकों में ये चहल रहे हैं। आज दोघं पण आम्ही चालतो. हम दोनों जा रहे हैं, तिकडे दरी आहे, उधर खाई इकडून है आम्ही चाललोय दोघं. और हम चल रहे हैं। अचानक जॉन ब्रदरचा पाय घसरला. अचानक में जॉन ब्रदर का पैर फिसल गया डायरेक्ट घसरला, धरून लटकून राहिला. और ऐसे लटक रहा है। पास्टर विकास, पास्टर विकास, तुमच्या मीटिंगला आलो होतो मी वर्शिप केली, मला वाचवा, मला हेल्प करा. तुम्हारी मीटिंग में मैं आया था, मुझे बचाओ, मुझे बचा लो, मैं गिर रहा हूँ। मी बोलणार त्यांना, मैं बोलूंगा उसे, ब्रदर जॉन, आमचे चर्च तुमच्यासाठी प्रेयर करणार. हमारी कलीसिया तुम्हारे लिए जरूर प्रार्थना करेगी.
मी पण प्रेयर मध्ये आठवण ठेवतो. मैं भी तुम्हारी प्रार्थना में याद तो रखूंगा. म्हणतो अरे मी मरायला लागलो, मी चाललो खाली, मला वाचवा, मला हात द्या. वो कहेगा अरे मैं तो मर रहा हूँ, मुझे बचाओ, मुझे हाथ दो. I will pray for you. पास्टर कहेंगे नहीं, मैं जरूर तेरे लिए प्रार्थना करूंगा. My church will pray for you. मेरी कलीसिया तुम्हारे लिए जरूर प्रार्थना करेगी. We have WhatsApp group. I will pray. Put your prayer request on the group. हमारे पास WhatsApp ग्रुप है, तुम्हारी प्रार्थना रिक्वेस्ट में WhatsApp ग्रुप में My डालूंगा. YouTube channel is there. I will put this prayer request there. मेरा YouTube चैनल भी है, मैं वहां पर भी आपकी प्रार्थना रिक्वेस्ट डाल दूंगा. On Facebook I will put this prayer request. फेसबुक पे भी मैं ये प्रार्थना रिक्वेस्ट डाल दूंगा. Don't worry brother, everything will be all right. चिंता मत करे ब्रदर, सब कुछ ठीक हो जाएगा. चालेल. चलेगा. प्रार्थना करतो ना त्याच्यासाठी. प्रेयर तो कर रहा हूं ना मैं. कृती वाचून विश्वास व्यर्थ आहे. विश्वास के बिना कर्म मरा हुआ है. हालेलुया. देवाच्या प्रिय लोकांनो, फक्त प्रार्थनेने होणार नाही. सब कुछ प्रार्थना से नहीं होगा. जर असं असतं तर स्वर्गातच येशूने प्रार्थना केली असती, त्यांच्या पापाची क्षमा कर. ऐसा अगर होता तो स्वर्ग में ही परमेश्वर प्रार्थना करता था कि इनके पापों की क्षमा कर दो. क्षमा सोडा, खिमा झाला असता. काय फायदा. हालेलुया. क्षमा छोड़ो, खिमा हो जाता. हालेलुया. नो यूज. कोई मतलब ही नहीं. He came to the world. वो इस दुनिया में आया. Practically God came to the world. कार्य रूप में परमेश्वर इस दुनिया में He आया. stayed here with us. वो अपने साथ रहा. For 33.5 years he stayed with us. 33.5 साल हुआ हमारे He साथ. died for you and me. वो आपके लिए मेरे लिए मारा गया. Practically, physically he came. कार्य रूप में, शारीरिक रूप में वो यहाँ था. Always don't say I will pray, I will pray. हर बार ये ना कहो कि मैं प्रार्थना करूंगा. Sometime you have to say I will do it in Jesus name. कुछ समय ऐसा भी करना चाहिए, आपको कहना चाहिए कि मैं ये काम जरूर करूंगा यीशु के नाम में. बोला यीशु मसीह की जय. तुम्ही अडचणीत असलं, अगर आप अड़चन में हो, पैसे नाही, थोडे पैसे पाहिजे. पैसा नहीं है, थोड़ा सा कम है. ब्रदरला तुम्ही सांगायचं नाही, ब्रदर मला 500 रुपयाची गरज आहे. कोई ब्रदर को कह दो कि ब्रदर मुझे 500 रुपए की जरूरत है. मदत करता का? मुझे मदद करोगे? तो म्हणाल मी प्रार्थना करतो. वो कहेगा कि मैं प्रार्थना करूंगा. मग तुम्ही म्हणाल तू फक्त प्रार्थना कर, मदत करू नको. तो आप कहना कि हाँ तू सिर्फ प्रार्थना ही करना, मदद कुछ कर मत करना. तुम्हाला कळतं मला काय सांगायचं? आपको पता चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Sometime you need to do some practical work. कुछ समय ऐसा होता है कि आपको कार्य रूप में आपको कार्य करने की जरूरत है. Can you say amen to that? आमीन बोलेंगे? You have to be strong in prayers. आपको प्रार्थना में मजबूत होना है. But don't just pray. सिर्फ प्रार्थना ही ना करें. What you are praying, जो प्रार्थना कर रहे हो, you have to work according to it. उसके अनुसार आपको काम भी करना है. Hallelujah. Praise the Lord. एखाद्याला प्रॉफेसी होती, देव तुला परदेशात घेऊन जाणार आहे. एक को भविष्यवाणी होता है कि तुझे बाहर देश लेकर जाएगा परमेश्वर. आणि त्याला 10 वर्षांनी विचारलं का, तो म्हणतो काय प्रॉफेसी केली विकास पास्टरने, मी गेलो का बाहेर गावी? क्या पास्टर ने भविष्यवाणी किया? 10 साल हो गया, मैं गया क्या बाहर देश में? नम्रपणे विचारतो, ब्रदर तुमचा पासपोर्ट द्या, मी त्याच्यावर प्रेयर करतो. मैं विनंती करता एकदम नम्रता से, पासपोर्ट दीजिए, मैं इसको प्रार्थना कर देता हूँ. तो म्हणतो अजून राशन कार्ड नाही आपलं. अभी तो राशन कार्ड भी नहीं है. पासपोर्टचं काय बोलतो? पासपोर्ट का क्या बात कर रहे हो? त्याने पासपोर्टच काढलं नाही विश्वासाने, तो बाहेर गावी जाईल का? वो पासपोर्ट ही नहीं निकाला विश्वास के साथ. आणि वो गेला बाहर तर जाएगा. तिकडून इकडे फेकून देतील त्याला. और जाएगा तो फिर उधर से इधर फेंक देंगे उसको. Are you getting something? कुछ समझ में आ When रहा है? Lord tells you something, you have to take bold step towards that. जब परमेश्वर आपको कुछ कहता है तो आपको मजबूती से आगे कदम बढ़ाना है. Hallelujah. Hallelujah. बोलो यीशु मसीह की जय. When you receive prophecy, जब आप भविष्यवाणी प्राप्त करते हो, when God reveals you something, और परमेश्वर आपको कुछ बताते हैं, just तो don't keep praying. सिर्फ प्रार्थना ना करें. With your prayers, you have to be active. और प्रार्थना के साथ आपको कार्य भी करना You है. have to take a bold step. आपको मजबूती का कदम आगे बढ़ाना है. Amen to that. आमीन बोले. Hallelujah. In this spiritual warfare, इस आत्मिक युद्ध में 3 things I'm going to share. 3 बातें मैं आपको जरूर बताऊंगा. Are you listening carefully? आप लोग ध्यान से सुन रहे हो? Wow. Amen. Hallelujah. The first thing, पहली बात, take every battle to the spiritual level. सारे जो युद्ध है वो आत्मिक क्षेत्र पर लेकर जाओ. Amen to that. आमीन कहेंगे. Hallelujah. 1 Corinthians 12 verse 10. पहला कोरिन्थियों 12:10 We'll read. 1 Corinthians. पढ़ेंगे. पहला कोरिन्थियों 12:10. फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की
और किसी को आत्माओं की परख और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। नेक्स्ट वर्स। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है। Yes. और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। But one and the same Spirit works all these things, distributing to each one individually as he wills. परंतु ये सारे प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, जिसे वो चाहता है वो उसे बांट देता है। Hallelujah. All the weapons that we have, जो सारे हथियार हमारे पास है, they are spiritual weapons. वो आत्मिक हथियार है। Take every battle on spiritual level. और सारे युद्ध को आप आत्मिक स्तर पर ले जाओ। Can you say amen to that? आमीन कह सकते हैं? Hallelujah. Devil tries to take spiritual things to the physical level. और शैतान जो चाहता है वो आत्मिक युद्ध को शारीरिक रूप में लेकर आना चाहता है। समझते सगळ्यांना? समझ में आ रहा है सबको? खोटं बोलतात, झूठ बोल रहे हैं आप लोग। खरंच समजतं? सच में समझ में आ रहा है? काय समजतं? क्या समझ रहे हैं? शैतान आत्मिक गोष्टींना दैहिक गोष्टीमध्ये आणतो, पण देवाच्या लोकांनी दैहिक असो आत्मिक गोष्टी असो सगळ्या गोष्टींना आत्मिक गोष्टींच्या द्वारेच लढलं पाहिजे। शैतान जो है आत्मिक बातों को शारीरिक बातों पर लेकर आता है, परंतु परमेश्वर के जो लोग हैं वो शारीरिक बातों को आत्मिक बातों के स्तर तक लेकर जाना है। Amen. Praise the Lord. Amen. It is little difficult to understand, but I am here to explain it. Hallelujah. ये मुश्किल बात है पर मैं यहाँ हूँ आपको समझा दूंगा जरूर। Jesus went to Nazareth. यीशु मसीह नाजरत गए। He did not perform many miracles there. वहाँ पर उन्होंने ज्यादा चमत्कार नहीं किए। Why it happened? क्यों ऐसा हुआ? Do you know one thing? पता है आपको एक बात? Because of the unbelief of the people of Nazareth. नाजरत के लोगों के अविश्वास के कारण। Hallelujah. The Galilees, they did not believe Jesus. जो गलीली लोग थे वो यीशु पर विश्वास नहीं करते थे। When Jesus, it's powerful when Jesus is doing everything everywhere in his own village. No miracles. जहाँ पर यीशु मसीह सारी जगह जाता, सारी बातें करता, सारे चमत्कार करता। Everywhere he performed miracle, but among his own people, less miracles or no miracles. और सभी जगह वो बड़े बड़े चमत्कार करता, पर खुद के लोगों के यहाँ पर कोई चमत्कार नहीं, कोई काम ही नहीं। हालेलुया। नाजरेत मध्ये चमत्कार जास्त झाले नाही। कारण काय होतं माहिती का? नाजरत में ज्यादा चमत्कार नहीं हुए। आपको उसका कारण पता है क्या है? येशू जिथे गेला तिथं दुष्टात्म्यांनी लोकांनी सगळ्यांनी ओळखला आणि बोलले हा देवाचा पुत्र आहे। और यीशु जहाँ भी गया वहाँ पर लोगों ने कहा, दुष्टात्माओं ने भी कहा कि ये परमेश्वर का पुत्र है। म्हणून चमत्कार झाले। इसलिए चमत्कार हुए। नाजरेत मध्ये येशू आला, लोक म्हणले योसेफाचा पुत्र आहे म्हणून चमत्कार नाही झाले। नाजरत में आया और लोगों ने कहा कि यूसुफ का पुत्र है, इसीलिए वहाँ पर चमत्कार नहीं हुए। येशूला ते जगिक रीतीने बघत होते, अरे ना तो हा माहिती मला योसेफ नाही का तो सुतार त्याचा मुलगा आहे हा, ती मरिया नाही का तिचा मुलगा आहे हा। त्यांनी त्याला आत्मिक लेवल वरून एकदम जगिक लेवल मध्ये आणलंय। योसेफाचा पुत्र ऑर्डिनरी मुलगा म्हणून मिरेकल नहीं झाले। यीशु मसीह को आत्मिक स्तर से लेकर जगिक स्तर पर लेकर आया और कहा कि ये जो है यूसुफ का पुत्र है, ये जो सुतार का काम करता है उसका पुत्र है, मरियम का पुत्र है, उसे उस स्तर पर लेकर आया। इसीलिए वहाँ पर विश्वास नहीं था, चमत्कार भी नहीं हुआ। जे लोग येशूला ऑर्डिनरी समजतात त्यांच्यासाठी मिरेकल होऊ शकत नाही। और जो यीशु मसीह को साधारण समझता है उनके जीवन में उनके लिए चमत्कार नहीं होता। जे म्हणतात कि यीशु ख्रिस्त जिवंत देवाचा पुत्र है, और जो कहते हैं कि यीशु मसीह जिंदा खुदावन का बेटा है, त्याला एवढे मिरेकल देवला दाखवणार और उन्हें इतने चमत्कार परमेश्वर दिखाएगा, त्या माणसाला मरेपर्यंत चमत्कार दिसतील और वो मरने तक उसे चमत्कार दिखता रहेगा। ऐका चमत्कार बघता बघता हा माणूस मेला, चमत्कार देखते देखते वो इंसान मर जाएगा। येशू त्याला परत उठले, उठ अजून चमत्कार दाखवायचे, त्याला मेलेला तो उठवेल, अजून चमत्कार दाखवेल। यीशु मसीह से मरने पर से भी उठाएगा, बोलेगा ये उठ और चमत्कार देखना है, और चमत्कार देखेगा वो। आमीन। हालेलुया। Our God is a miracle working God. हमारा परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। So the first thing, पहली बात we need to understand, हमें समझना है, take everything on spiritual realm.
सारी बातों को आत्मिक स्तर पर लेकर जाइए। एखादा व्यक्ती, एखादी बहीण तुमच्याशी भांडतीये, अगर एक बहन आपसे लड़ती है तो कोणीतरी रस्त्यावर जाता जाता विनाकारण तुम्हाला शिव्या देत आहे, कोई भी रास्ते में जाते जाते यूं ही आपको गाली दे दिए, कोणीतरी अचानक जनावर येतं, बैल येतो, धडक देतो गाडीला, और कोई भी बैल आकर गाड़ी को ठोक दिया, अगर अचानक कोणीतरी मुद्दाम तुम्हाला त्रास देतं, कोई भी जानबूझकर आपको तकलीफ देता है तो कुठलीच गोष्ट उगाच होत नाही. कोई भी बातें यूं ही नहीं होता. त्या गोष्टींच्या माग कोणते दुष्ट आत्मे ते ओळखायला शिका. उन बातों के पीछे कौन सी दुष्ट आत्माएं हैं उनको पढ़ना सीखो. मुलगी अचानकच आईशी भांडायला लागते, लड़की जो है माँ से यूं ही झगड़ा करने लगती है. रोज प्रेमाने बोलते, एक दिवशी अचानक आई तुला अक्कल नाही, आई तुला कळत नाही, आई तू अशी, आई तू तशी, हे ते दुनियादारी, आईचा पार उद्धार. और माँ के साथ वो बेटी इतने प्यार से रहने वाली अचानक में झगड़े करने लगती है, कहती है कि माँ तू ऐसी है, माँ तू वैसी है, और माँ का तो उसने तो उद्धार ही कर दिया. शिव्या देऊन काही बोलून गाली देके कधीच वागत नाही, असं काय झालं तिला, गाली देके कुछ भी करके, और माँ कहती है इसे क्या हो गया अचानक ऐसे, जाने दे. त्या आईला कळायला पाहिजे, उस माँ को ये समझना चाहिए, evil spirit is working in my daughter. दुष्ट आत्मा जो है मेरे बेटी के अंदर काम कर रही है. You have to recognize all these dark forces. तुम्हें ये सारे अंधकार की ताकतों को पहचानने आना चाहिए. And when you recognize those spirits, और जैसे ही आप उन आत्माओं को पहचानने लगोगे, you need to start praying. आपको प्रार्थना भी करना शुरू कर देना चाहिए. In the name of Jesus, यीशु के नाम में I bind this evil spirit right now in the name of इस Jesus. दुष्ट आत्मा को बांधता हूँ मैं यीशु के नाम में. Leave her. छोड़ इसे, Leave. छोड़. That evil spirit will go. और वो दुष्ट आत्मा चली जाएगी. बघा त्या फुग्याने टाळ्या वाजवल्या, लोक शांत. ताली बजाय पर लोग शांत बैठे हैं. हे बोलले इविल स्पिरिट गो, इविल स्पिरिट गो. गेल्यानंतर लोकांच्या, देवाच्या लोकांनी आनंद केला पाहिजे. आमेन. मैंने कहा कि दुष्ट आत्मा चले जाए, वो चले गए तो भी लोग आनंद मनाने चाहिए परमेश्वर के. फुग्याला वाटला आता किती दिवस मी राहावा, फुटतो आणि मी प्रभूचा गौरव करतो. ग्लोरी ग्लोरी. वो गुब्बारे को भी लगा मैं फुटकर मैं परमेश्वर की महिमा करूंगा, मैं कितने दिन जीऊं. हालेलुया. So you have to recognize those dark forces. तो आपको उन अंधकार शक्तियों को पहचानना है. Many people they have good salary. बहुत सारे लोगों को अच्छे पगार होते हैं, They have good income. अच्छी आमदनी होती है, But there is no satisfaction in their life. पर उनके जीवन में कोई शांति नहीं है. किती पण पगार दे त्यांना, कितना पुरत नाही. कितना भी पगार दो उन्हें पुरता ही नहीं है. छोटा पगार होता तेव्हा रडके होते, छोटा पगार था तो भी रोते थे, मोठा पगार झाला तरी पण रडके राहिले. बड़ा पगार हुआ तो भी रोता हुआ ही रह गए. पहिले बोलत होते काय करायचं पास्टर, खूप कमी सॅलरी आहे. पहले रोते थे क्या करे पास्टर बहुत कम पगार है. पगार वाढला, काय करायचं पास्टर, सॅलरी भरपूर आहे पण दवाखान्याचा खर्च, स्कूलची फी, हा खर्च तो खर्च, काय देणार, गरीबच आहे आम्ही. पगार बढ़ गया तो फिर भी कहते हैं पास्टर क्या करे, पगार तो बढ़ गया परंतु दवाखाने का खर्च, स्कूल का फीस, ये सब है वो है क्या. माणूस एवढा स्वार्थी प्राणी आहे ना, और मनुष्य जो है वो इतना स्वार्थी प्राणी है. अख्ख्या जगातली सगळी संपत्ती गोळा करून एखाद्याच्या अकाउंटवर दिली तरी तो म्हणेल अजून काही मिळेल का. पूरे जग का पैसा जोड़कर उसके अकाउंट में डाल दो तो भी वो कहेगा कि कुछ और मिलेगा क्या. समाधान घ्या या गोष्टींमध्ये. इन्हीं बातों में समाधान हो जाए. पैशाने समाधान मिळत नाही. पैसे से संतुष्टि मिलती नहीं है. आप लोग सुन रहे हैं. लोकांकडे खूप पैसा आहे, लोगों के पास बहुत पैसा है, पण रात्री झोप येत नाही. पर उन्हें रात को नींद नहीं आती. मर्सिडीज बेंज घेतात, मर्सिडीज बेंज लेते हैं, रात्री 2 वाजता उठून बघतात कुणी दगड मारले का. हे जरा बघ गाडी, मला आता स्वप्न पडलं दगड मारलं कुणीतरी, बघ व्यवस्थित आहे करतो. रात को 2 बजे उठकर देखते हैं अरे वो मर्सिडीज को किसी ने पत्थर तो नहीं मारी, इधर जाके देखो तो कोई पत्थर तो नहीं मारे. उनकी नींद हराम हो जाती है. बेसिनचा नळ चालू झाला, राहिला रात्रीचा फुसफुस आवाज आला, कुणी माझ्या मर्सिडीजची हवा तर काढत नसेल. तो उठतो परत बघतो, अरे बायको कुणीतरी हवा काढते वाटत. नाही हो, किचनचा नळातून पाणी येते, तुम्हाला काय वेळ लागले का काय. हालेलुया. ज्यांच्याकडे पैसा है ना ते समाधानी नहीं है. बेसिन, घर में जो बेसिन होता है वो नल अगर खुला रह गया रात को और उसमें से फुसफुस आवाज आने लगी तो भी वो रात के नींद में उठकर कहेगा कि किसी ने मेरे बाइक की टायर पंक्चर तो नहीं कर दी, जरा जाकर देखो तो.
देवाला सांगा मला गरीब पण ठेवू नको, पण मला एवढा पैसा देऊ नको का मी घमंडी बनेल. और परमेश्वर से कहो कि मुझे गरीब भी ना रखे और इतना पैसा ना दे कि जिससे मैं घमंडी हो जाऊं. मी स्वतः असे लोक बघितले ज्यांच्याकडे करोडो रुपये पण असे नम्र लोक आहेत. बापरे बाप, खूप नम्र लोक. मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि उनके पास करोड़ों रुपए हैं पर वो इतने नम्र है. बाप रे बाप. तुम्ही देवाला गॅरंटी दिली पाहिजे, देवा मला दे मी घमंडी होणार नाही. आपने गारंटी देना चाहिए परमेश्वर को कि परमेश्वर तू मुझे दे और मैं नम्र रहूंगा, घमंडी नहीं बनूंगा. Then God will give you. तभी परमेश्वर आपको देगा. Hallelujah. Praise the Lord. इकडं 20,000 सॅलरी मिळाली तर सरळ मिशीला पीळ बसायला लागतो. डायरेक्ट आशा मिशा होते, डायरेक्ट मोठा झाला. यहाँ पर 20,000 की सैलरी ऐसे मुझे जो नीचे होती थी तो वो ऐसे ऊपर रहते. एका अंकलला मी बघितलंय, अशा मिशा लांब होते. दारू पिले का लगेच पिलेल्या नसला का खाली. त्यांचा चेहरा बघूनच बोलायचो. अंकलाच घेतली ना, लांबून पण कळतं तुम्हाला हे असं आहे ना. हालेलुया. एक अंकल को मैंने देखा, उनकी मूंछें जो है वो नीचे रहती थी और जब भी वो शराब पीते थे उनकी मूंछें ऊपर हो जाती थी. वो ऐसे करते और पास्टर उन्हें दूर से पहचान लेते थे कि आज वो पिए. हालेलुया. मिशा बघूनच कळतं माणूस पिलाय का नाही. मुझे देखकर ही पता चलता है दूर से कि ये पिया हुआ है या नहीं पिया हुआ. What you have gained in this life, इस जीवन में आपने क्या प्राप्त किया है it is not important. वो महत्वपूर्ण नहीं है. How much big your bank account is, कितना आपका बैंक अकाउंट बड़ा है, how bigger is your house in this world, इस दुनिया में आपका घर कितना बड़ा है, how educated you are, आप कितने पढ़े लिखे हो, it is not important in the kingdom of God. ये परमेश्वर के राज्य में महत्व नहीं रखता. But how many souls you brought in the kingdom of God. पर कितने आत्मा आपने परमेश्वर के राज्य में लेकर आए. How you live on this earth. आप कैसे इस धरती पर जीते हो. What you have gained in the spiritual life. पर आत्मा में आपने क्या क्या प्राप्त किए, That is important. वो महत्वपूर्ण है. Take every battle on the spiritual level. और सारे युद्ध को आप आत्मिक क्षेत्र में लेकर जाए. Now, the David is ready to fight with Goliath. अभी जो दाऊद जो है वो गोलियत से लड़ने के लिए तैयार है. Hallelujah. हालेलुया. David is a man of a spirit. और दाऊद जो है वो आत्मिक व्यक्ति है. He went to the Goliath with just 5 stones. और वो गोलियत के पास गया सिर्फ 5 पत्थर लेकर. Hallelujah. हालेलुया. David is looking at that Goliath. दाऊद उस गोलियत को देखते हुए, That Goliath is staring at David. और वो गोलियत दाऊद को घूर रहा है. And Goliath is saying, और गोलियत कह रहा है, am I a dog you brought a stick to beat me? मैं क्या कुत्ता हूँ तू जो लकड़ी लेकर आया मुझे मारने के लिए. आपल्या दाविदाच्या हातात काठी, और दाऊद के हाथ में लकड़ी था तिकडे गल्ल्याच्या हातात तलवार आणि ह्याच्या हातात काठी. और उधर गोलियत के हाथ में तलवार है और दाऊद के हाथ में लकड़ी गल्ल्यात है. विचारतो, मी काय कुत्रा आहे का? गोलियत पूछता, मैं क्या कुत्ता हूँ क्या. दावीद मनात म्हणला असेल, हायस तुला थोड्याच वेळात कळेल. दाऊद मन में कहा होगा कि हाँ है, तुझे थोड़ी देर में पता चल जाएगा. What you confess is very important. आप जो कबूल करते हो बहुत महत्वपूर्ण है. गल्ल्यात स्वतःला आधी कुत्रा म्हटला म्हणून कुत्ते की मौत मारा गया. गोलियत ने स्वयं कबूली किया कि वो कुत्ता है इसलिए वो कुत्ते की मौत मारा हे गया. काय कुत्रा आहे का? मैं क्या कुत्ता हूँ क्या. Yes. हाँ है. दाविदाने प्रूव्ह केलं. दाऊद ने उसे साबित कर दिया. दाविदाने दगडच का घेतले? दाऊद ने पत्थर ही क्यों लिया. दुसरं काहीतरी घ्यायचं नाही. He can take anything else. कुछ और लेना चाहिए था ना. He can take the sword. वो तलवार भी ले सकता था. चिलखत जड झालं होतं, ढाल जड झाली होती, नो प्रॉब्लेम. He can take the sword and he can kill that giant. झिलीम और ढाल भी वो वजन हुआ रहेगा पर वो तलवार तो लेकर भी लड़ सकता था. लढू शकत होता. लड़ सकता था. पण त्याने ते दगडच का घेतले 5? वो पत्थर ही क्यों लिए 5. जुन्या करारात असं लिहिलंय, पुराने नियम में ऐसे लिखा है, जो कोणी परात्पर देवाची निंदा करेल जो कोई परम परमेश्वर की निंदा करेगा त्याला थोंडमार झाला पाहिजे. उससे पथरा होना चाहिए. तो गल्ल्यात देवाच्या विरुद्ध बोलत होता. वो गोलियत जो है परमेश्वर के विरोध में बात कर त्याला रहा था. दगड मारण्याची ताकद ना शौलात होती ना कुठल्या इस्रायली माणसात होती. उसे पत्थर मारने की ताकत ना ही उस शाऊल राजा में था
ना ही कोई इजरायली लोग में पण था, ती ताकद दाविदाकडे होती. पर वो ताकत था दाऊद के म्हणून अंदर. त्याने आपल्या बरोबर दगड घेतले आणि त्या जायंटला त्याने खाली पाडले. इसीलिए दाऊद ने उस पत्थर को लिया, उस दानव को नीचे गिरा दिया. Hallelujah. Amen. He took that battle on spiritual level. उसने उस क्षेत्र को आत्मिक क्षेत्र पर लेकर गए. सगळे बघतात गल्ल्यात किती मोठा आहे, सब लोग देख रहे गोलियत कितना बड़ा है दावीद किती चुटकुसा आहे, और दाऊद कितना चुटकुला है. तू किती लहान आहेस, तू कितना छोटा है. अरे बाळा तू कसा लढशील, अरे बाला तो कैसे लड़ेगा, अरे तू किती पिट्टूला आहे, तू किती छोटूसा आहे, कितनी पिट्टूला है, कितना छोटा है. एवढा छोटासा बाळ आज मरणार त्या गल्ल्याच्या हाताने. इतना छोटा सा बाल गोलियत के हाथों मारा जाएगा. तुम्हाला माहिती आहे दावीद काय म्हटलं, आपको पता है दाऊद ने क्या कहा, गल्ल्यात हा गोलियत तू भाल आणि बर्ची घेऊन माझ्याकडे आलायस, तू ढाल और तलवार लेके मेरे पण पास मी आया है. माझ्या परात्पर देवाचं नाव घेऊन तुझ्याकडे आलो आहे. मैं मेरे परमेश्वर का नाम लेकर तेरे I am सामने आया coming हूं. to you in the name of my Lord and Savior. मैं मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर के नाम से तेरे I am सामने आया coming हूं. to you with the name of my Jehovah. और मैं अपने यहोवा के नाम से तेरे He सामने went आया and हूं. he fought the battle. वो गया और लड़ा उस युद्ध को. Dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाई बहनों, do you know one thing? आपको पता है एक बात, गल्ल्यात गोलियत फक्त शरीराने अवजड होता, वो शरीर से हट्टा कट्टा था, पण दावीद आत्म्यात त्याच्यापेक्षा फार स्ट्रॉंग होता. और दाऊद जो है आत्मा में गोलियत से बढ़कर पुष्ट था. जे आत्म्यात स्ट्रॉंग आहेत ते धन्य आहेत. जो आत्मा में मजबूत है वो धन्य है. परिस्थिती आमची खराब आहे, पैसे नसले तर चालेल, आत्म्यात स्ट्रॉंग पाहिजे. परिस्थिति खराब है, पैसा नहीं है तो भी चलेगा, पर आत्मा में हमें स्ट्रॉन्ग रहना है. पास्टरने चालता येत नाही, गुडघा दुखला तर चालत, टेन्शन नाही, पण आत्म्यात स्ट्रॉंग पाहिजे. घुटने दर्द हो रहे हैं, आपको चलने नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, परंतु हमें आत्मा में मजबूत होना है. पास्टर मला इंग्लिश नाही येत, मला नीट नाही बोलता येत, मला मी शिकलो नाही, काय टेन्शन नाही, काहीच प्रॉब्लेम नाही. पास्टर आत्म्यात स्ट्रॉंग पाहिजे. मुझे इंग्लिश नहीं आता, मुझे ठीक से बोलना नहीं आता, मैं क्या करूं, तो उस बात का टेंशन ना ले, परंतु आप आत्मा में स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. मजबूत, David was strong in the spirit. हमें आत्मा में मजबूत होना चाहिए. He took that battle to the spiritual level. उसने उस क्षेत्र को आत्मिक क्षेत्र पर लेकर गया. Spiritual world is more stronger. और आत्मिक दुनिया जो है वो सार बहुत मजबूत है. That's why David received victory from Almighty God. इसीलिए दाऊद को विजय प्राप्त हुआ स्वर्ग परमेश्वर से. Take your battle to the next level. आपकी जो युद्ध है आप अलग स्तर पर लेकर जाइए. सैतान प्रत्येक गोष्ट जगिक रीतीने आणते. बघ तुझं डोकं दुखतंय, बघ तुझे पैसे संपले, बघ तुझ्या मुलीचं शिक्षण कसं झालं, बघ तो मुलगा फेल झाला. He will take everything to the ground level. और शैतान जो है वो दुनिया की बात, जगत बातों को बताएगा कि देख तेरा सिर दुख रहा है, देख तेरा तबीयत ठीक नहीं, तेरे बच्चे पास नहीं होते, उसका पढ़ाई ठीक नहीं हो रहा है, वो जगत क्षेत्र में लेकर आता है. Take everything in the spiritual realm. उन सभी बातों को लेकर आप आत्मिक क्षेत्र में लेकर आइए. सैताना तुला मी गरीब वाटतोय, शैतान तुझे मैं गरीब लग रहा हूँ, तू काय माझे SBIचं अकाउंट बघितलं, तू क्या मेरे SBI का अकाउंट देख रहा है, माझं बँक ऑफ हेवनचं अकाउंट बघ, तुझे डोळे फुटतील. मेरे स्वर्गीय अकाउंट देखो, तेरे आंखें फूट जाएगी शैतान. हालेलुया. हालेलुया. I am very rich. मैं बहुत अमीर हूँ. म्हणा I am rich. बोलो मैं अमीर हूँ. असं म्हणा मी श्रीमंत आहे, बोलो मैं अमीर हूँ. मी धनवान आहे. मैं धनवान हूँ. आमेन. आमीन. काही लोक कॉन्फिडन्सने नाही बोलत. कुछ लोग कॉन्फिडेंस से नहीं बोल रहे, आत्मविश्वास से नहीं बोल रहे. खरंच तुम्ही श्रीमंत आहे? आप सच में अमीर हो? किती श्रीमंत आहे? कितने अमीर हो? किती श्रीमंत आहे? कितने अमीर हो? मोजू नाही शकत. एकदा आम्हाला देवाने स्वर्गाचा दृष्टांत दिला. एक बार मुझे परमेश्वर ने स्वर्ग का दृष्टांत दिखाया. थोडक्यात सांगेल, सगळं नाही सांगणार कारण मला विषय पूर्ण करायचा. स्वर्गाचा दृष्टांत दिला. मी तिकडे खूप गोष्टी बघितल्या, फुलं बघितली, गाण्यावर डान्स करतात. मैंने फूलों को देखा, वो गाने पर नाच रहे हैं. एका रस्त्याच्या बाजूला एक व्यक्ती आराधना करतोय देवाची. और एक रास्ते के इधर परमेश्वर, लास्ट टाइम सांगितलं होतं, पूर्ण डायमंडनी भरलेलं आहे. सांगितलं ना लास्ट टाइम, पूर्ण डायमंडनी शरीर भरलेलं आहे. एक व्यक्ति नाच रहा है रास्ते पर स्वर्ग में. हालेलुया. पूर्ण अंगावरती और डायमंड उसके आहे. शरीर में पूरे हीरे
हीरे भरे हुए हैं। खूप खूप गोष्टी दाखवल्या. एक रूम आहे, फक्त लहान लेकरच आहेत सगळे. और एक रूम है जहाँ पर सिर्फ छोटे बच्चे मी हैं। प्रभूला विचारले, लहान लेकर काय करतात? और मैंने पूछा परमेश्वर छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं? जे बाळ जन्म होतच नाही आईच्या पोटात मरतात त्यांना डायरेक्ट हेवन मध्ये स्पेशल रूम आहे. और जो माँ के पेट में जो बच्चे मरते हैं उनको डायरेक्ट स्वर्ग का जगह मिलता है। Can you say amen to that? Hallelujah. Many things God revealed to me. Many things. काही लोक विचार करतात माझं बाळ गेलं कुठं असेल ते तुझ्या पोटापेक्षा तुझ्या घरापेक्षा जास्त सुखी ठिकाणी. हालेलुया. नो नीड टू वरी अबाउट. कुछ लोग सोचते रहेंगे कि अरे मेरा बच्चा मर गया, वो कहाँ रहेगा, अभी कैसे होगा? आपके गर्भ से, आपके घर से बढ़कर वो अच्छे जगह पर है। परमेश्वर स्वर्गीय स्थान में वो है। एक गोष्ट मला सांगायची. आय हॅव टू टेल यू वन थिंग. एक बात मुझे आपको बताना जरूरी है. एक इतका मोठा बंगल्यासमोर मला उभं केलं. घर असं नुसतं सोनं चांदी लागलं, नुसतं डायमंड लख. खूप मोठा बंगला आहे. मुझे एक ऐसे बंगले के सामने खड़ा किया जो सोना चांदी और डायमंड से, हीरे मोतियों से बना हुआ है. पवित्र आत्म्याला विचारलं. पवित्र आत्मा को मैंने पूछा, प्रभु हा बंगला माझा आहे का? ये बंगला मेरा है क्या? तुझा नाही. नहीं, तेरा. मग कुणाचा? फिर किसका है? एका व्यक्तीचं नाव सांगितलं. एक व्यक्ति का नाम बताया. मी शॉक झालो. मैं आश्चर्य हो गया. त्याचं इथं बंगला कसं काय प्रभू? उसका बंगला यहाँ कैसे? थोडक्यात सांगतो त्या व्यक्तीबद्दल. उस व्यक्ति के बारे में मैं थोड़े बारे में बता दूंगा. हा व्यक्ती जे हॉस्पिटलमध्ये आयसीयू शेवटचा श्वास घेतोय. वो व्यक्ति आईसीयू में जे हॉस्पिटल में आखिरी सांसें गिन रहा बऱ्याच है. वर्षांपूर्वी तो सिरियस कंडिशन मध्ये आहे. ही वॉज अबाउट टू डाय. डॉक्टर्स टोल्ड देम विदिन 2 hours ही विल डाय. और कुछ साल पहले वो सीरियस था और डॉक्टर कहते थे कि 2 ही घंटे में वो मरने पर है. All the relatives came सारे रिश्तेदार आए for the funeral. और उसके दफना के लिए. And the younger brother of this brother, he called me for the prayer. और उसके छोटा भाई आया और प्रार्थना करने के लिए I पास्टर को went बुलाने to के the लिए. hospital. पास्टर गए हॉस्पिटल. I went to that patient. वो पेशेंट के पास गए. तो असा वॉर्ड होता ना की मास्क कंपल्सरी होतं. डॉक्टर नर्स सगळे मास्क. आता आपण कोविड मध्ये बघितलं पण तेव्हा खूप त्या वॉर्डला मास्कच लागतो. उस वार्ड में मास्क लगाकर ही जाना जरूरी था. कोविड में जैसे हमने देखा वैसे ही था. सख्या भावांनी बहिणींनी सगळ्यांनी मास्क लावून उभे होते. देवाने सांगितलं मास्क लावायचं नाही. सगे भाई बहन ने मास्क लगा कर गए थे, परंतु परमेश्वर ने कहा कि तू मास्क नहीं बिना लगा. मास्क लावता मी तिथे गेलो. बिना मास्क लगाए नहीं वहां गया. मला माहित होतं माझा प्रभू आज काहीतरी करणार. मुझे पता था कि मेरा परमेश्वर प्रार्थना कुछ स्टार्ट करेगा. केली. आय स्टार्टेड प्रेइंग. मैंने प्रार्थना शुरू कर दी. देवा या भावाला बरं कर. परमेश्वर ये भाई को अच्छा कर. त्याला HIV झालाय, टीबी झालाय, लास्ट स्टेजला आहे, मरणार आहे, सगळं संपला विषय. देवा याला बरं कर. परमेश्वर इसे HIV हो गया है, एड्स हो गया है, टीबी हो गया है, लास्ट स्टेज पर है, पर इसे अच्छा कर. सडनली आय गॉट अ विजन. पर मुझे तुरंत एक दर्शन दिया. I saw the door has shut. मैंने देखा कि वो दरवाजे बंद हो गए. I was shocked. Whenever I pray, I have seen the doors are open. मैं जब भी प्रार्थना करता तो मैं देखता था कि दरवाजे खुले हैं. I asked God. मैंने पूछा परमेश्वर से, देवा दरवाजा का बंद झाला हे काय? परमेश्वर ये दरवाजा क्यों बंद कर दिया, क्या हुआ? देवाने स्पष्ट सांगितलं. परमेश्वर ने साफ रीति से कह दिया, या व्यक्तीसाठी मरणाचे दरवाजे मी बंद केले. इस व्यक्ति के लिए मृत्यु के दरवाजे मैंने बंद कर दिए. असं विजन बघितलं. जैसे मैंने दर्शन देखा, जी आधीची प्रार्थना होती, ओ लॉर्ड ब्लेस हिम, हील हिम. मैं जो पहले प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर इसे आशीष कर. आता विजन मिळालं म्हणून मी स्ट्रॉंग झालो. अभी दर्शन मिला तो मैं और मजबूत. हे मरणार नाही, हा वाचणार आहे. ये नहीं मरेगा, ये जिंदा होगा. सांगितलं पास्टर तुम्हाला. परमेश्वर लोग क्या हुआ डॉक्टर पास्टर नर्स सगळे बघतायत. और हॉस्पिटल में सभी देख रहे हैं. तुम्ही तात्पुरती ट्रीटमेंट देता, माझा जिवंत देव याला वाचवणार आहे. पास्टर ने कहा कि तुम थोड़ी देर के लिए उसका इलाज कर रहे हो, परंतु मेरा परमेश्वर उसे हमेशा के लिए जिंदा कर रहा है. प्रेयर करून गेलो तो उठूनच बसला आहे. मैं प्रार्थना करके गया, वो उठकर ही बैठ गया. हालेलुया. बरा झाला. डिस्चार्ज. अच्छा हो गया, डिस्चार्ज भी मिल गया. एका कपड्याच्या दुकानात कामाला लागला. एक कपड़े की दुकान में काम कर रहा है. 1 महिना काम केलं. 1 महीना काम किया. छोटस त्याचा पगार, थोड़ा सा छोटा पगार लाया. त्याच्यातला दशमांश काढला. उसका दशमांश निकाला. मला फोन केला, पास्टर दशमांश द्यायचा घरी आहे. मुझे फोन किया, बोला दशमांश देना है त्या घर. दिवशी मला नाशिकला प्रेयरला जायचं होतं. उस दिन मुझे नासिक को प्रेयर में जाना मी था. प्रेयर केली तेव्हा गाडी खर्च पाठव. माझ्या कॉलेज टायमिंग मध्ये मैंने कॉलेज टाइमिंग में प्रार्थना की, परमेश्वर मेरे गाड़ी खर्चा को भेज दे. त्याने तो दशमांश दिला. उसने वो दशमांश दिया. ते पैसे घेऊन मी नाशिकला मिनिस्ट्रीला गेलो. वो पैसे लेकर मैं नासिक में गया सेवकाई. शेकडो लोकांचा उद्धार झाला. और सैकड़ों लोगों का उद्धार हो गया. सुनिए. आणि मग देवाने मला जे स्वर्गात दाखवलं, और जो मुझे स्वर्ग में परमेश्वर ने दिखाया, ह्या माणसाचं नाव, ये इंसान का नाम, त्याने तुला जी छोटीशी भेट दिली होती ना, वो जो छोटा सा भेंट दिया है ना,
त्या भेटीमुळे तुझ्याद्वारे एवढ्या लोकांचा बचाव झाला. और उस भेंट की वजह से इतने लोगों का बचाव हुआ. त्याच्या त्या छोट्याशा दानामुळे उस छोटे से दान की वजह से स्वर्गात त्याला मोठा महाल आहे. स्वर्ग में उसको बड़ा महल मिल रहा है. हालेलुया. How much you give, that is not important. कितना आप देते हो वह महत्वपूर्ण नहीं है. Giving in right place is very important. सही जगह पर देना वो महत्वपूर्ण है. Are you here, church? आप यहाँ पर हो. ऐकता सगळे लक्ष सुन रहे हो. Hallelujah. My dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाई बहनों, you are in the spiritual battle. आप आत्मिक युद्ध में हो. Take everything on the spiritual level. सारी बातों को आत्मिक क्षेत्र में लेकर जाओ. छोटंसं बाळ आहे, रडतंय, का रडतंय? Take it on the spiritual level. छोटा बच्चा है, वो रो रहा है, क्यों रो रहा है, उसे आत्मिक क्षेत्र पर लेकर जाओ. एकाला आकडीचा त्रास होता, आकडी पडलाय, तोंडातून फेस चालला. येशू ख्रिस्त आला, दुष्टात्म्याला धमकवलं, तो व्यक्ती बरा झाला. और एक को तो आकड़ी आ रहा है, फिट्स आ रहा है, पर वो तड़प रहा है. यीशु आया, उसे प्रार्थना किया और वो व्यक्ति चंगा हो गया. Can you say amen to that? आमीन कैसे? Hallelujah. You have to understand what is in the spiritual realm. आपको समझना चाहिए कि आत्मिक क्षेत्र में क्या है. Take every battle to the spiritual realm. आपके सारे युद्ध को आत्मिक क्षेत्र में लेकर जाओ. प्रत्येक गोष्टीला त्याच अँगलने बघायचं. हर एक बातों को उसी नजरिए से देखना है. Can you say amen? आमीन कैसे? हालेलुया. अडचण आली, ह्याच्या मागे कोणते दुष्ट आत्मे? अगर परिस्थिति समस्या आई तो देखना है कि इसके पीछे कौन सी दुष्ट आत्मा है. If evil spirit is working, अगर दुष्ट आत्मा काम कर रही you है, have to cast out that demon in the name of Jesus. उस दुष्ट आत्मा को आपको भगाना है यीशु के नाम से. Can you say amen? आमीन कह सकते हैं. सैतानाला किती वेळा रिक्वेस्ट केल्यावर तो जातो? शैतान को कितने बार रिक्वेस्ट करने से वो चला जाता है. 1000 वेळा जर रिक्वेस्ट केली तो जाणार नाही. 1000 बार भी करायची नाही. 1000 बार भी आप विनंती करोगे तो भी वो नहीं जाएगा. रिक्वेस्ट करना ही नहीं है. सैताना जातोस का नाही? शैतान तो जाएगा क्या नहीं. काही लोक विचारतात, तुला कोंबडा देऊ का, तुला बकरा देऊ का, तुला काय पाहिजे? कुछ लोग पूछते हैं तुझे क्या दूं, कोबड़ा दूं या बकरा दूं. असा इंटरव्ह्यू घेतात ना एकदम. ऐसा इंटरव्यू लेते असं हैं. वाटतं आज तक चॅनल चालू आहे. ऐसा लग रहा है आज तक चैनल खुला कुठून आलात तुम्ही आणि कसं काय इकडे येणं केलं? काही खाणार का, तुम्हाला काय पाहिजे का, तुम्हाला काय झालं, तुम्हाला तुम कहाँ से आए, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें कुछ चाहिए क्या, खाने को दूं क्या, क्या पीने को दूं. त्याला पण मजा वाटते एकदम. उसे भी आनंद लगता है. तो घेतो कोणाचं नाव? सासूनी केलंय. और वो नाम ले लेता है उसने कि मेरे सास ने किया है. हे 90% पास्टर लोक घरात भांडणं लावून जातात. और 90% पास्टर लोग घर में लड़ाई. मला आजपर्यंत कळालं नाही. सुनेला त्रास झाला तर सासूने केलं, सासूला काय झालं तर सून करून येते माहेरातून काहीतरी. तो अभी तक मुझे ये बात पता नहीं चली कि कुछ भी हो जाए तो सास को बहू ने किया, बहू ने सास को किया, बहू ने अपने मायके से कुछ करवा के आई है. तिने जेवणात टाकलं, याने खाण्यामध्ये टाकलं, त्याने पानामध्ये टाकलं, त्याने बिडीमध्ये टाकलं, त्याने इथून चारलं, असं झालं. उसने खाने में डाला, उसने पीने में डाला, उसने बीड़ी में डाला, उसने पान में डाला, उसने इसमें डाला, उसने उसमें डाला. हालेलुया. हालेलुया. गॉड रिवील्स एवरीथिंग. परमेश्वर सब कुछ जाहिर करता है. But you should not break the families like that. पर आपको परिवार इस तरह से नहीं तोड़ना है. हालेलुया. एकदा असंच झालं, एका बहिणीला भूत लागलं होतं आणि तिने सांगितलं की माझ्या घरात कोरलेलं एक गोष्ट. और एक बहन को दुष्ट आत्मा से पीड़ित थी और उन्होंने बताया कि उनके घर में कुछ गड़ा हुआ है. आणि आम्हाला पण बघायचं होतं काय कोरलंय. म्हटलं चलो. हमें भी देखना था. हम भी बोले चलो. आम्ही गेलो त्या घरी. हम गए उसके. तिचे डोळे बंद प्रेयर मध्ये और उसकी आंखें बंद है प्रार्थना. अशी गेली किचनच्या तिथं, अशी एका जागेवर डोळे बंद करून हात आपटते आणि बरोबर तेवढीच जागा, नवीन कोबा करतो ना आपण, नवीन प्लास्टर तशी होती, तेवढीच जागा बरोबर. सगळे म्हणले खोदा. आम्ही गेलो तिकडे, पाय ठेवला फक्त आणि प्रार्थना करून त्याला बाहेर केली. हालेलुया. एक बहन के घर में गए पास्टर और देखा कि उन्होंने कहा कि कुछ तो गड़ा हुआ है, जैसे कि नया ही प्लास्टर अभी बना हुआ है. वो बहन प्रार्थना कर रही, वहां पर हाथ मारा और इनको भी देखना था कि वहां पर क्या है. अब वो गए, प्रार्थना किए, बस. आम्ही त्याला खोदून काढलं नाही, काय नाही, त्याला बाइंड केलं. ती मुलगी पूर्ण बरी झाली. बाइंड किया और लड़की अच्छी हो गई. हमने खोदा नहीं उसे. ह्या सगळ्या गोष्टी परिवार तुटला नाही पाहिजे. इन सभी बातों में परिवार नहीं टूटना चाहिए. खोदून जर काढलं असतं, सासू सासऱ्यांचं नाव येत होतं. मग ते सासू सासरे नंतर पाया पडत आहेत, हात जोडत आहेत, आम्हाला माफ करा पास्टर, हे ते आमच्याकडून झालं, हे ते. पण त्या गोष्टी जर एक्सपोज केल्या असतं तर घर तुटलं असतं.
सास ससुर जो है वो हाथ पैर पड़ रहे, पास्टर मुझे माफ कर दो, हमने वैसे किया ऐसे किया। अगर वही बात अगर पहले बता देते तो परिवार टूटने के चांसेस होते हैं। So you have to be careful. आपको ध्यानपूर्वक रहना है। Can you say amen? आमीन। Take every battle to the spiritual level. सारे युद्ध को आप आत्मिक क्षेत्र में लेकर जाएं। Hallelujah. Don't take anything in physical level. कोई भी शारीरिक बातों में बातें न करें। Hallelujah. हालेलुया। जो स्तर आहे सैतानाचा नेहमी तुम्हाला सांगणार, जगिक गोष्टी दाखवणार, तुला गाडी नाही, तुला पैसा नाही, तुला हे नाही, पण प्रत्येक गोष्ट तुम्हाला आत्मिक दृष्टीने बघायची। आमीन। शैतान हमेशा आपको जगिक बातों को दिखाएगा कि तेरे पास गाड़ी नहीं है, पैसा नहीं है, परंतु उन सारी बातों को ले जाकर आपके आत्मिक क्षेत्र के आत्मिक नजरिए से देखना है आपको। सेकंड थिंग, दूसरी बात, Ephesians chapter 6 verses 13 to 18. इफिसियों 6 उसका 13 से 14। Put on armors of God. परमेश्वर के हथियार बांध लो। Amen. परमेश्वराने आपल्याला त्याचं सगळी शस्त्र सामग्री दिलेली आहे, हो की नाही? परमेश्वर ने अपने सारे हथियार दिए हैं, दिए नहीं दिए? हो की नाही? हाँ या ना? दिले? दिया है? नक्की दिलेत का? सच में दिए हैं? थँक यू जीसस। ही जी शस्त्र सामग्री देवाने आपल्याला दिलेली आहे, और ये जो हथियार परमेश्वर ने हमें दिया है, तारणाचं शिरस्त्राण और उद्धार का टोप, नीतिमत्वाचं उरस्त्राण और नीति का झिल्लिम, हालेलुया, हालेलुया, स्वॉर्ड ऑफ हिज वर्ड, और उस वचन का तलवार, हालेलुया, शील्ड ऑफ फेथ, और विश्वास का झिल्लिम ढाल, है की नाही, सत्याचा कमरबंद, और सत्य का कमरबंद दिया है, सुवार्तेचे जोडे, और सुसमाचार के जूते दिए हैं। आता हे सगळं तुम्ही ज्यावेळेस ऐकता, और ये सब जब आप सुनते हो, माणूस पूर्ण असं झाकलेला आहे पूर्ण देवाच्या गौरवाने। मनुष्य जो है मनुष्य जो परमेश्वर की महिमा से ढका हुआ है। सगळी शस्त्र सामग्री दिली का नाही देवाने? हथियार दिए नहीं दिए? या सगळ्या गोष्टी आम्हाला धारण करायच्या, और ये सारी बातें हमें लेना है, पहनना है। एकदा असंच विचार केला, डोकं झाकलंय, एक बार मैंने सोचा कि सिर ढका हुआ है, हातामध्ये पण प्रोटेक्शन आहे, हाथों में भी हमारे सुरक्षा दिया है, पायापर्यंत पूर्ण प्रोटेक्शन आहे, पैर तक पूरा सुरक्षा दिया है, पाठीला काहीच नाही, पीछे कुछ नहीं दिया। पाठीला काय प्रोटेक्शन लिहिलं का तिथं? इफिस 6 मध्ये काहीच नाही। इफिसियों 6 में कुछ दिया कि पीठ के लिए कोई कारण हथियार? आपल्याला माहिती आहे आपल्या पाठीमागे आपले बंधू उभे आहेत, और हमें पता है कि हमारे पीठ पीछे हमारे भाई बंधु ही खड़े हैं। Can you say amen? Amen. हालेलुया। हालेलुया। जर तुम्ही देवाच्या राज्यात आहात तर तुमच्या पाठीमागे तुमचे भाऊ आहेत। अगर आप परमेश्वर के राज्य में खड़े हो तो आपके पीछे आपके भाई लोग ही खड़े हैं। आणि या युद्धामध्ये तुम्ही असताना जर कधी वैऱ्याला पाठ दाखवली, और उस युद्ध में रहते हुए कभी आप दुश्मन को अगर वो पीठ दिखाए, तो पाठीत खंजीर मारणारच। और वो पीठ में खंजर घुसाएगा Are you here, church? आप यहाँ पर हो? हालेलुया। हालेलुया। या युद्धात कधी हार मानायची नाही, कधी पाठ दाखवायची नाही, नांगराला हात घातला पुढे जायचं। इस युद्ध में कभी हार नहीं मानना, जब तक आपने हल पर हाथ रखे हैं तो पीछे मुड़कर देखना ही नहीं है। हालेलुया। नो टर्निंग बैक, पीछे मुड़ना नहीं है। Can you say amen? Amen. बोलो यीशु मसीह की। First thing, take this battle to the spiritual realm. पहली बात, आप इस युद्ध को आत्मिक क्षेत्र में लेकर जाए। Second thing, have all the armors of God. और दूसरी बात, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। Third thing, तीसरी बात, do not fight with devil. शैतान से आपको नहीं लड़ना है। Can you say amen? आमीन कहेंगे? Nobody will tell you like this. कोई भी ऐसा नहीं करेगा। Nobody will tell. Everybody fight with devil, fight with devil, fight. Show me the scripture where it is written you have to fight with devil. सब लोग कहेंगे कि शैतान से लड़ो, शैतान से लड़ो। मुझे एक वचन बता दो बाइबल में कहाँ लिखा है कि शैतान से लड़ो। Hallelujah. Jude chapter. There is one chapter only, 9th verse will read. यहूदा का किताब 9वां वचन पढ़ेंगे। Yet Michael, the archangel, in contending with the devil, when he disputed about the body of Moses, dared not bring against him a revealing accusation, but said, "The Lord rebuke you." Amen. किससे मिला तो पढ़ेंगे? Jude. परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान से
प्रभू तुझे डांटे। आमेन. ज्यावेळेस सैतान मोशेचं शरीर घ्यायला आला होता, ऐकताय सगळे? आप लोग सुन रहे हैं कि जिस वक्त शैतान मूसा का लाश मांगने के लिए आया, व्हॉट ही वॉन्टेड टू डू, उसे क्या करना था? हे मेलेलं शरीर घेऊन जर त्याने इस्रायल लोकांपुढे टाकलं असतं ना, सगळे हातात झाले असते. अरे आमचा माणूसच मेला, आता आम्ही पुढे जाणार नाही, सगळे स्कॅटर झाले असते. और अगर शैतान उस लाश को लेकर इजरायली लोगों के सामने रखते तो इजरायली लोग निराश हो जाते कि हमारा जो अगुआ है, हमारा जो लीडर है वो मर चुका है, वो लोग बिखर जाते, टूट जाते. सैतान त्या मिखाएलशी भांडण्यासाठी लढण्यासाठी आला, पण मिखाएल लढला नाही. एवढंच बोलला, प्रभू तुला धमकाव. और शैतान जो है वो मिखाएल से लड़ने के लिए आया, परंतु मिखाएल जो है वो लड़ा नहीं, परंतु शैतान को डांटा कि कहा कि प्रभु तुझे डांटे. Even the archangel Michael, he is not fighting with the devil. और माइकल जो स्वर्गदूत है वो भी उससे लड़ा नहीं. Hallelujah. So what we need to do? तो क्या करना चाहिए? James chapter 4 verse 7. याकूब उसका 4:7. Resist the devil and he will flee from you. शैतान का सामना करो और वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा. हालेलुया. सगळे म्हणा, सैतानाला अडवा. सभी लोग कहेंगे शैतान को अड़ाओ. सैतानाला अडवा. शैतान को अड़ाओ. म्हणजे तो तुमच्यापासून वो तुमसे निघून जाईल. दूर भाग जाएगा. इथे लिहिले का सैतानाला मारा, युद्ध लढा. काही लोक अशी प्रेम करतात, हे प्रभू सगळे पनवेलचे आत्मे दुष्ट आत्मे निघून जाऊ दे. कुठं पाठवतो? दिल्लीला. कुठं पाठवतो? अख्ख्या भारतातले आत्मे निघून जाऊ दे, सगळे दुष्ट आत्मे निघून जाऊ दे. कुठं पाठवतो? अमेरिकेला. कुछ लोग प्रार्थना करते हैं कि सारे पनवेल की दुष्ट आत्माएं निकल जाए. उसे कहाँ भेजते हो? दिल्ली में. अगर कहते हैं कि पूरे भारत का दुष्ट आत्माएं निकल जाए, और उन्हें कहाँ भेजोगे? अमेरिका में. Those who don't understand the spiritual realm, they pray like this. जिनमें आत्मिक क्षेत्र की बातें पता नहीं है, वही ऐसे प्रार्थना करते हैं. No need to fight with devil. There is no need. There is no single scripture you have to fight with devil. No single scripture. शैतान से लड़ने के लिए कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बाइबल में कोई भी ऐसा वचन नहीं है कि आप शैतान से लड़ो. Some people they pray, Lord, right now put this devil in the fire. और कुछ लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर अभी इसी वक्त इस शैतान को अग्नि में डाल दो. अरे मग ते बायबल मध्ये लिहिलंय 1000 वर्ष त्याला जेल होणार, मग त्याला परमेश्वर त्याला नरकात टाकणार. मग ते मधलं पूर्ण बायबलचे वचन तुम्ही गायब करता काय? और जो बीच का आता त्याला नरकात टाकू. अभी तुम नरक में डाल रहे हो, तो बाइबल में जो वचन लिखा है उसका क्या कि 1000 सालों तक वो कैद रहेगा, फिर वो नरक की अग्नि में डाला जाएगा. उसका क्या होगा? Pray with understanding. समझ के साथ प्रार्थना करो. Pray with Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करो. जागेत ना सगळे? सभी जागे हैं. हा पण एक मिरेकल है. Praise ये भी एक चमत्कार है बड़ा. हालेलुया. बोले यीशु मसीह की जय. Never fight with devil. कभी शैतान से न लड़े. Just you need to resist. सिर्फ आपको सामना करना है. त्याला अडवा. उसे सामना करो. सैतानाला अडवा, सैतानाची जिरवा. गव्हर्नमेंटचा प्रोजेक्ट आहे ना, पाणी अडवा पाणी जिरवा. तसंच सैतानाला अडवा, सैतानाची जिरवा. आमेन. हालेलुया. यू हैव टू रेजिस्ट हिम. तो आपको उसका सामना करना है. बोले यीशु मसीह की जय. अडवणे म्हणजे काय? त्याला स्टॉप करणे. सामना करना मतलब क्या? उसे रुकाना. इकडून यायला लागला तर यीशु रक्त जाय. इधर से आया तो उसे कहना यीशु रक्त जाय. निघून जाय. वो निकल जाए. इकडून यायला लागला की लगेच तिथं यीशु रक्त जाय. उधर से आया तो इधर कहना यीशु रक्त जाय. इकडून यायला लागला की लगेच यीशु रक्त जाय. इधर से आएगा तो कहना है यीशु वरून रक्त पत्रा जाय. काढायला लागला का यीशु रक्त जाय. उधर से पत्रा निकालने लगा तो त्याला फक्त धक्के देत राहायचं, लात मारत राहायचं, बस. उसे धक्का देना है, सिर्फ लाते ही मारते रहना है. Christian should be good football player. और क्रिश्चियन मसीह लोगों को एक अच्छा फुटबॉल खेलने वाला व्यक्ति आला होना का चाहिए. लात. आया तो लात मारो. Amen. Hallelujah. From wherever the devil comes to you, just kick him. जहाँ कहीं से भी वो आए, बस उसे लात मारते जाओ. No need to fight with devil. कोई जरूरत नहीं है शैतान से. तुम्हाला कळलं मी काय बोलतो? आपको समझ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? सैतानाशी लढण्यासाठी देवाने आम्हाला बोलवलं नाही. शैतान से लड़ने के लिए परमेश्वर ने हमें नहीं बुलाया है. सैतानाला मारण्याचं काम देवाचं आहे. शैतान को मारने का काम है वो परमेश्वर का है. आम्ही योद्धे आहोत. हम योद्धा है. हालेलुया. वी हॅव टू फाइट. हमें लड़ना तो है.
सैतानाबरोबर नाही लढायचे, दुरात्म्यांबरोबर आम्हाला. शैतान से नहीं लड़ना है, दुष्ट आत्माओं से लड़ना है. हालेलुया. बोले येशू मसीह की. काही लोकांना अजिबात कळत नाही असं मला चेहऱ्यावरून वाटतं. तुम्हाला कळतंय? आपके चेहरे से मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है. तुम्हाला समजतंय? समझ रहे हैं? Matthew chapter 12 verses 28 to 29. मत्ती उसका 12 अध्याय 28 से 29. और यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। या कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है जब तक कि पहले वह उस बलवंत को न बांध ले, तब वह उसका घर लूट लेगा। Amen. बलवान माणसाचं घर तुम्हाला कसं लुटता येईल? बलवान माणूस म्हणजे सैतानाला म्हटलेलं आहे. बलवान इंसान का घर कैसे आप लूट सकते हो? बलवान यानी आप शैतान को कहा गया है. त्याचं घर लुटण्यासाठी बायबल सांगतं आधी त्याला बांधलं पाहिजे. उसका घर लूटने के लिए पहले बाइबल बताती है कि उसे बांधना जरूरी है. Who is that strong man? कौन है वो बलवान? Devil is that strong man. शैतान है वो बलवान. The revelation of this word is that. और इस वचन का जो प्रकटीकरण वही है. Whatever devil has stolen from you. जो कुछ भी शैतान ने आपसे चुराए हैं. ऐकता तुम्ही सगळे? सभी लोग सुन रहे हैं? हो की नाही? हाँ या ना? 5 राजे आले. 5 राजा आए. त्यांनी सगळं सदोम गमोराला लुटलं आणि ते निघून गेले. सदम गमोरा को लूट लिया और वो चले गए. लोटाची पण प्रॉपर्टी घेऊन गेले. लोट की भी प्रॉपर्टी लेकर गए. जे होतं सगळं लुटून घेऊन गेले. सब कुछ वो लेके चले गए. अब्रामाला कळालं. अब्राहम को पता चला. त्यांनी सगळे घरातले नोकर चाकर गोळा केले. योद्धे गोळा केले नाही. किती लोक आमेन म्हणतील? आमेन. योद्धे गोळा केले. उन्होंने हालेलुया. योद्धा को नहीं चुना परंतु नौकर निकर को चुना. असे योद्धे त्यांनी घेतले का ते सगळे नौकर चाकर आहेत. और ऐसे योद्धा लिए कि वो सब नौकर चाकर ही थे. चला आपल्याला जायचंय. चलो हमें जाना है. बोटावर मोजणे इतके लोक बरोबर घेतले. 5 राजांना हरवून सगळी प्रॉपर्टी रिटर्न आणली. उंगलियों पे गिन सकते हैं इतने लोगों को लेकर गए और राजाओं से लड़े और सारी संपत्ति वापस लेकर आए. हालेलुया. हालेलुया. जो अधिकार आदमाने एदेन बागेत गमावला होता. जो अधिकार एदेन बाग में आदम ने गमाया था. Jesus Christ, he took that authority from devil once again and God has given that authority one more time to us. और यीशु मसीह ने उस अधिकार को जो आदम ने खो चुका था वो फिर से शैतान से लेकर हमें वो अधिकार दे दिया है. So how you can take all the lost things of your life from the devil? और कैसे हम अपने सारे खोए हुए चीजें शैतान के हाथों से छुड़ाकर हम ले सकते हैं? बलवान माणसाला बांधल्याशिवाय त्याच्या घराला लुटता येत नाही. बलवान इंसान को बांधने के बगैर हम उसके घर को नहीं लूट सकते. For this binding, तो इस बांधने के लिए in the Greek Bible it is written, the word is dio, D-I-O, dio. ग्रीक बाइबल में एक शब्द दिया है डिओ. म्हणजे असं बांधायचं त्याला श्वास पण घेता नाही आला पाहिजे. ऐसे बांधना है उसे कि उसे सांस भी लेने नहीं आना चाहिए. हालेलुया. कोणाला बांधायचं आता? किसको बांधना है? जे तुम्ही इथं बांधाल ते कुठं बांधलं जाईल? यहाँ पे जो बांधोगे तो कहाँ बांधा जाएगा? काय लोकांना विश्वासच नाही. पास्टर इथं बांधलं तिथं कसं बांधलं जाईल? घरामध्ये टीव्ही आहे ना? किसी को विश्वास ही नहीं है. कोई कहते हैं यहाँ बांधेगा तो वहाँ कैसे स्वर्ग में बंधेगा? घर में टीवी है. टीव्ही तिकडं भिंतीवरती इथून रिमोटने बदलतात ते चालतं. मग इथं बांधलेलं तिथं का नाही बांधलं जाणार? टीवी घर में है, वहाँ बैठकर रिमोट से चला सकते हैं, वो चल सकता है. तो ये क्यों नहीं चल सकता कि यहाँ बांधे और वहाँ भी बंध जाए? Hallelujah. Hallelujah. Whatever you will bind here, it will be bound in heaven. जो कुछ भी यहाँ बांधोगे वो स्वर्ग में बांधा जाएगा. Hallelujah. Whenever you pray, जब भी आप प्रार्थना करते हो, bind that devil in the name of Jesus. शैतान को उस यीशु के नाम से बांध दो. Bind evil spirits in the name of Jesus. सारे दुष्ट आत्माओं को बांध दो यीशु के नाम से. Once the devil and the evil spirits are bound, और एक बार वो सारे दुष्ट आत्माएं बंध गए, whatever has stolen by devil, it will be restored. और जो कुछ भी शैतान ने चुराया है वो फिर से आपको मिल जाएगा. Can you say amen to that? Amen. All the lost things of your life will come back to you. जो आपके जीवन में आपने जो कुछ भी खोया है वो सब कुछ Whatever is gone, it will come again. वो फिर से आ जाएगा. Amen. Amen. बोलो यीशु मसीह की. Do you believe in this word? इस वचन पर विश्वास करते हो? This word is very powerful. ये वह शब्द जो बहुत सामर्थ्यशाली है. This is very powerful. ये बहुत सामर्थ्यशाली है. Whatever the Job lost, जो कुछ आयुब ने खोया, he received double portion.
उसने दुगना हासिल किया, Receive double portion. उसने दुगना हासिल किया। Some people they say, I have lost my gold, कुछ लोगों ने कहा कि मैं अपना सोना खो चुका, I lost my phone, मैं फोन खो चुका, I lost my house, मैं अपना घर खो चुका, I lost my vehicle, मैं अपना गाड़ी खो चुका, I lost many years of my life, और मैंने बहुत अपने साल खो I चुके, lost this, I lost that. मैं ये खो चुका, मैं वो खो चुका। But when you bind the devil, और जब तुम उस शैतान को बांधते हो, whatever you have lost, जो कुछ भी तुमने खोया है, it will come back to you. और वो आपके पास आएगा, It will come back to you. वो आपके पास आएगा। God is going to restore your blessings one more time. और परमेश्वर आपके आशीषों को फिर से नया बनाने God is वाला going है। to restore that power one more time in your life. और परमेश्वर आपके जीवन में उस सामर्थ को फिर से नई तरीके से बनाने You are वाला going है। to see greater things now onwards. आप अभी से आप एक बड़े-बड़े बातों को देखने वाले हो। Can you say amen? आमेन। Hallelujah. हालेलुया। काही लोक म्हणतात माझी जमीन गेली. और कुछ लोग कहते हैं कि मेरी जमीन चली गई। एक गेली टेन्शन घेऊ नका, अनेक जमीन येतील प्रिया. एक गया चला गया, पर परमेश्वर और बहुत सारे जमीन देने एक वाले घर गेला असं रडत बसू नका, काही घरं येणार आहेत एक प्रिया. घर गया तो टेंशन मत लो, रो मत, परंतु बहुत सारे घर आने वाले हैं। थोडी संपत्ती गेली, टेन्शन नाही घ्यायचं, खूप मोठी येणार आहे. थोड़ी सी संपत्ति चली गई, कोई बात नहीं, बहुत बड़ी संपत्ति आने वाली है। काही लोक आयुष्यभर तेच रडगाणं गात बसतात. और जिंदगी भर कुछ लोग यही रोना रोते हैं, माझं हे गेलं, मेरा ये गया, माझं ते गेलं, मेरा वो गया, माझं सगळं गेलं. मेरा सब कुछ गया। आता म्हणायचं माझं सगळं येणार आहे. अभी बोलना है मेरा सब कुछ आ रहा It है, is coming. आ रहा है, My blessings are coming. मेरे आशीष आ रहे My हैं, God is restoring me. मेरा परमेश्वर मुझे Devil, I command you. शैतान मुझे याद कर देना, Give back everything that you have stolen from me. सब कुछ जो चुराया वो फिर से लौटा दे। In the name of Jesus, यीशु के नाम में। I declare blessings of Abraham over your life. और सारे अब्राहम के आशीष को मैं घोषणा करता हूँ, Whatever is lost, जो कुछ भी खोया है, it will be restored from this day onwards. आज के बाद से फिर से नए तरीके से प्राप्त होगा। It is coming back. वो फिर से आ रहा है, It is coming वो back. फिर से आ रहा है, It is coming वो back. फिर से आ रहा है। एक गुंठा जागा घेतली का सैतानाने, एक गुंठा जगह ले लिया शैतान ने, त्याला 7 गुंठे परत द्यावे लागले. उसे 7 गुंठा फिर से देना पड़ेगा, He has to give you. उसे देना ही He पड़ेगा, will give you. और वो देगा जरूर, Because there is a power in the name of Jesus. यीशु के नाम में सामर्थ है। Hallelujah. आमीन। Start binding those things in Jesus' name. और उसे बांधना शुरुआत कर दो यीशु मसीह के नाम से। And then you can ask the Lord to restore your life. तब आप परमेश्वर से कह सकते हैं, परमेश्वर मेरा जीवन एक नए तरीके से फिर से बना दे। Can you say amen? आमीन कहेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Finally, आखिरकार what is the end of the Satan and all the evil spirits? तो शैतान और उसके दुष्ट आत्मा का अंत क्या है? Revelation प्रकाशित वाक्य chapter 20 20वां अध्याय verse 10. 10वां वचन। Revelation 20 and verse 14. प्रकाशित वाक्य 20:14। Revelation 20 verse 14. प्रकाशित वाक्य 20:14। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए, या आग की झील दूसरी मृत्यु है। Hallelujah. Death and Hades were cast into the lake of fire. मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। आग की झील म्हणजे काय? नरक. आग की झील मतलब क्या है? नरक। नरक म्हणजे काय? दुसरं मरण. नरक मतलब क्या है? ये दूसरी मृत्यु है। Hallelujah. हालेलुया। Hell is a second death. और जो नरक है वो दूसरी मृत्यु है। One day the death will die. एक दिन मृत्यु जो है वो ही मर जाएगी। Can you say amen? आमेन। Hallelujah. It is very difficult, but you need to understand. ये बहुत मुश्किल बात है, परंतु आपको समझना जरूरी है। एक दिवस मरण मरणार आहे. एक दिन मृत्यु खुद मर जाएगा। कारण मरणाला मरणाच्या स्वाधीन केलं जाईल. मरण कायमस्वरूपी संपून जाईल. त्याच्यानंतर आपण जे असू, आपल्याला मरणाचा अनुभव येणारच नाही. मृत्यु जो है स्वयं मृत्यू प्राप्त कर जाएगी, और मृत्यू खुद मृत्यू का स्वाद चखेगा, और हम जो है हम कभी मृत्यू के स्वाद नहीं चखेंगे। तेव्हा असं आम्हाला शरीर मिळेल, कोणी तलवार मारली तरी आरपार निघून जाईल. और तभी हमें ऐसा शरीर मिलेगा कि कोई तलवार भी मारे तो भी वो आर पार चले जाएगा, हम मर ही नहीं पाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। From life to life. और जीवन से जीवन, Glory to glory. महिमा से महिमा। So one day the death will die. तो एक दिन वो मृत्यु मर जाएगी। Revelation 20:7-9. और प्रकाशित वाक्य 20:7-9।
The Bible says that बाइबल कहती है the devil will be, just will read. Now when the 1,000 years have expired, Satan will be released from his prison and will go out to deceive the nations which are the four corners of the earth, Gog and Magog, to gather them together to battle, whose number is as the sand of the sea. They went up on the breadth of the earth and surrounded the camp of the saints and the beloved city. And the fire came down from God out of the heaven and devoured them. The devil who deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are, and they will be tormented day and night forever and ever. Amen. प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय उसका 7 से 10 तक पढ़ेंगे। जब 1000 वर्ष पूरे हो चुके होंगे तो शैतान कैद से छुड़ा दिया जाएगा। वो उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और मागोग को, जिनकी गिनती समुद्र के बालू के बराबर होगी, भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। वे सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगे और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वो पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होंगे, डाल दिए जाएंगे और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। Can you say amen? आमीन कहेंगे। देवाने जेव्हा नरक बनवला, परमेश्वर ने जब नरक बनाया, it is not created for any human being. वो किसी इंसान के लिए नहीं बनाया गया है, just only for the devil and the evil spirits, that's all. सिर्फ वो दुष्ट आत्माएं और शैतान के लिए है। हालेलुया। देवाची इच्छा नाही की कोणी मनुष्याने नरकात जावं। परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि कोई मनुष्य नरक में जाए। पण लोकांची जर इच्छा असेल नरकात जायचं तर मग देव काय करणार? मग नरकातच जावं लागणार। और मनुष्य की कोई इच्छा होगी कि हाँ मैं नरक में जाऊंगा, तो फिर परमेश्वर भी क्या कर सकता है? Are you listening carefully? आप लोग सुन रहे हो ध्यान से? Yes or no? हाँ या ना? हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। Finally, आखिर में God will put devil and all the fallen angels into the lake of fire. और जो परमेश्वर है, सारे शैतान और उसके दुष्ट आत्मा को नरक की अग्नि में बैठेंगे, हालेलुया। डाल दिया जाएगा। आता त्याला नरकात टाकायचं, अब भी उसको नरक में डालना है, फक्त अडवायचं। काय करायचं? सिर्फ उसे अड़ाना है, लढायचं नाही। सैताना तुला कापून टाकतो तलवारीने, तुला मारून टाकतो आत्ताच्या आत्ता। लड़ना नहीं है कि शैतान मैं तुझे तलवार से मार डालूंगा, अभी क्या अभी तुझे मार डालूंगा। एवढं असतं तर येशूने त्याला एदेन बागेत 2 फटके दिले असते, तिथंच खलास झाला असता। अगर ऐसा ही होता तो एदन के बगीचे में ही परमेश्वर ने 2 फटके में उसे मार दिया नहीं होता। या सापाने फसवलं तुला, घे त्याला खाली, घे ठेचून टाक, मार, संपला विषय। ये सांप ने फंसाया तुझे, उसको ले नीचे, उसको कुचल दो, चलो मार डालो, खत्म करो बात। हालेलुया। हालेलुया। जर देवाने एदेन बागेत सापाला, त्या सैतानाला मारून टाकलं असतं, अगर परमेश्वर ने एदन के बगीचे में उस सांप को मार दिया होता, मानव कायमस्वरूपी पापीच राहिला असता। और मनुष्य जो है वो हमेशा के लिए पापी ही रह जाता। मानवाने त्या सापाला मारावं ही देवाची इच्छा होती। मनुष्य जो है वो उस सर्प को मारना चाहिए, ये परमेश्वर की इच्छा। म्हणून देवाला माणूस बनून यावं लागलं। इसीलिए परमेश्वर को मनुष्य बनकर इस आणि धरती पर म्हणून आना पड़ा। येशूने सैतानाचं मस्तक क्रूसावरती ठेचून टाकलं। और इसीलिए परमेश्वर ने क्रूस के ऊपर शैतान के सिर को कुचल दिया। त्याचा विजय त्याने आम्हाला दिला। उसका जो विजय है वो हमें दिया है। सैतानापुढे जेव्हा आम्ही उभे राहतो, और जब हम शैतान के सामने खड़े होते हैं, जुन्या काळात असे उभे राहत असते। पुराने नियम में हम ऐसे खड़े रहते हैं। फळ खाल्लं, फल खाया। आता नवीन करारात अभी नए करार में फळ खाल्लं ते जाऊ दे, वो फल खाया तो कोई बात नहीं, पण आता तुझं डोकं ठेचलं। पर अभी तो तेरा सिर ही कुचल देंगे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। We are the more than the conquerors. हम विजयशाली से बढ़कर हैं। We are the most victorious people. हम विजयशाली से बढ़कर हैं। Devil cannot stand against you. वो शैतान जो है वो आपके विरोध में नहीं खड़ा रह If सकता। God be for us, अगर परमेश्वर हमारे who सामने है, can be against तो us? कौन हमारे
are more than a conqueror. विजयशाली से बढ़कर है। We are the most blessed generation. हम सबसे आशीषित पीढ़ी है। Never say that. मैं कभी ना कहे Lord, what I can do? मैं क्या कर सकता हूँ। Devil is doing this and that. शैतान ये वो कर रहा है। Hallelujah. हालेलुया। Whatever he may do, वो कुछ भी करे, you have authority to stamp over the devil. आपको अधिकार है कि आप शैतान के ऊपर आप कुचल सकते हो। Hallelujah. Hallelujah. You can stamp over the evil spirits. आप दुष्ट आत्माओं को भी कुचल सकते हो। You have authority. आपके पास वो अधिकार है। Hallelujah. You have authority. आपके पास वो अधिकार है। काय लोकांना कळत नाही अथॉरिटी म्हणजे काय, अधिकारचा काय फायदा असतो. अब कुछ लोगों को अथॉरिटी अधिकार का मतलब ही नहीं पता। उसका मतलब क्या है? ट्रक ड्रायव्हर ट्रक घेऊन चालला, एक ट्रक ड्राइवर ट्रक लेकर जा नो रहा है, एंट्री मध्ये घेऊन चालला. वो भी नो एंट्री में लेके जा He रहा is है, taking his truck in no entry. और वो अपना ट्रक नो एंट्री में लेके जा रहा है। ट्रक ड्रायव्हर एकदम साधा, और ट्रक ड्राइवर जो है मोटा है, हट्टा कट्टा, एकदम पॉवरफुल स्ट्रॉंग, और वो मजबूत है ट्रक घेऊन चालला. और ट्रक लेकर जा रहा है। मध्येच एक लुकडा सुकडा पोलीस हवालदार ट्रॅफिक हवालदार रस्त्यात येतो, और एक शिट्टी मारतो, गाडी साईडला घे, नुसतं असं. और एक ट्रैफिक हवलदार जो लुक्का पुक्का होता है वो बीच में आता है, सिटी बजाता है और उसे कहता है कि इस तरफ हो जा. तो जाडा असो नाही तर कोणी पण असो त्याला ट्रक बाजूलाच घ्यायला लागणार. वो मोटा हो या कोई भी कितने भी सामर्थ्यशाली हो, उसे ट्रक बाजू में लेना ही पड़ता है. Because the policeman is having authority. क्योंकि वो पुलिस व्यक्ति के पास वो अधिकार होता है. शैतान दिसायला कसा पण असो, शैतान चाहे दिखने में कैसा भी क्यों ना हो, आपण कसे पण असो, हम कैसे भी रहे, पण अधिकार आमच्याकडे, पर अधिकार तो हमारे पास है. त्याच्याकडे अधिकार आहे, उसके पास अधिकार है, तो श्रेष्ठ आहे. वो श्रेष्ठ है. हालेलुया. डेविल शैतान get up, उठ, get out, निकल, don't come in this place. फिर से इस जगह में नहीं आना. He will say okay Okay, ठीक है. I'm going. He will go. मैं जा रहा हूँ. काही लोक लापट असतात. कोई जिद्दी होते हैं. मराठी किती लोकांना कळतं? मराठी कितने लोगों को आता है? हे प्रभु मस्त पाप्यावर दया कर. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ग्लोरी टू जीसस. तुम्हाला सगळ्यांना मराठी कळतं? सबको मराठी आता है. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. असली मराठी. प्रेज द लॉर्ड. असली मराठी है सच में. काही लोक लापट असतात. लापट शब्द ऐकले? लापट शब्द सुना है? जा म्हणलं तरी परत येतो. जहाँ बोलेगा तो फिर से आते हैं. लापटले चापट द्यायला. लापट को एक चापट देना पड़ता है. तो सैतान असंच. तो शैतान भी जा वैसे ही है. म्हटलं डोक्यावर पडलं तर डोक्याला फटका लागला, लक्षात नाही राहत. जा बोलेगा तो वो सुनता नहीं क्योंकि उसके सिर पे मार लगी है ना. फिर तो इकडे तिकडे त्याला लक्षातच नाही राहत. तिथून हाकललं होतं, परत तिथं जाऊन उभा राहतो. घेऊ का? वो इधर उधर घूमते रहते हैं, फिर से वो आता है. येऊ का मी? येऊ येऊ. और बोले मैं आऊँ क्या? आताच काढलं तुला, चल निघ निघ इथून. और अब हम कहेंगे अरे अभी तो निकाला तुझे, चल निकल अरे चल. हा तुम्ही हाकललं होतं नाही. He goes. शैतान बोलता है अरे हाँ तूने मुझे निकाला था ना, हाँ याद आया, मैं जाता हूँ. Many people they come to the meetings. बहुत लोग मीटिंग में आते हैं. पास्टर प्रेयर मिली, गुडघे बरे झाले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पास्टर प्रार्थना की और घुटने अच्छे हो गए. हालेलुया. घरी जाऊन परत फोन करतात, पास्टर संध्याकाळपासून परत दुखायलंय. फिर घर जाकर शाम को फिर से फोन करते हैं, पास्टर शाम से फिर से शुरुआत हो गई दर्द. अरे आता पास्टरला फोन करू नका, पास्टरच्या डायरेक्ट डॅडीला फोन करा वरती. भाई पास्टर को हालेलुया. फोन मत करो, पास्टर के पापा को फोन करो डायरेक्ट. When you pray, it goes for once, it can go forever. जब आप प्रार्थना करते हैं वो एक बार के लिए चला जाता है, पर वो हमेशा के लिए भी तो जा सकता है. Hallelujah. You need to pray. आपको प्रार्थना करने की जरूरत You है. have to remain in that faithfulness. उस विश्वास योग्य में बने रहना है आपको. Remind that devil. तो शैतान को याद दिलाओ. तुला कालच हाकललं होतं, कल ही भगाया था परत घेऊन तुझे. आला. फिर से आया तो तुझ्या डोक्याला मार लागला, तेरे सिर पे मार लगा लक्षात है नाही क्या? राहत. याद नहीं रहता है क्या? निघत निकल इसे. येशूच्या नाव. चल चल. परत तुमचे पाय बरे होते. फिर आपके पैर अच्छे हो जाएंगे. असं यायला लागला, थोडं थोडं दुकान निघ सांगितलं ना, निघ. वो फिर से आते रहेगा, थोड़ा थोड़ा ऐसा दर्द आता रहेगा. फिर से बोलना है ये निकल बोले देखो यीशु के नाम से. Hallelujah. Do not accept sickness in your body. कोई भी बीमारी अपने शरीर में कबूल ना करे. हे देवाचं मंदिर आहे, याला अशुद्ध गोष्टी चालत नाही. ये परमेश्वर का मंदिर है, इसे अशुद्ध बातें नहीं चलता इथं है. आजार विकाराला स्थान नाही. आप बीमार और बुखार को इससे कोई स्थान नहीं है इसके अंदर. Resist the devil and he will flee from और you. उसका सामना करो, वो भाग जाएगा. बोले यीशु मसीह. Hallelujah. हालेलुया. We are going to pray now. हम प्रार्थना करेंगे अभी.
We are going to pray for both the things. और दो बातों के लिए हम प्रार्थना करेंगे. God is giving you authority to cast out the demons. परमेश्वर हमें अधिकार दे रहा है कि हम दुष्ट आत्माओं को निकालें. Are you ready? आप तैयार हो? You want this gift? आपको ये वरदान चाहिए? How you can cast out the devil? कैसे आप शैतान को निकाल सकते हो? Bind him. बांध कर. Hallelujah. Hallelujah. Bind him. बांध कर. And rebuke. और उसे झिड़को. Come on. आज्ञा दो. In the name of Jesus. यीशु के नाम से. That devil will flee from you. तो दुष्ट जो है शैतान भाग Evil जाएगा. spirits will flee from you. और दुष्ट आत्माएं भाग जाएंगे तुम्हारे. Can you say amen? आमीन कहेंगे. Hallelujah. हालेलुया. आज नंतर घरात काही पण प्रॉब्लेम येऊ. आज के बाद घर में कोई भी समस्या क्यों ना हो. सैतानाला हाकलायचं. शैतान को भगाना है. देवदूतांचं स्वागत करायचं. स्वर्गदूत का स्वागत करना है. हालेलुया. हालेलुया. देवदूत जर आले घरात. और स्वर्गदूत जो अगर घर में आए. तुमचं प्रोटेक्शन. तुम्हारा सुरक्षा हो जाएगा. हालेलुया. एकदा आम्ही कुठं कॉन्फरन्सला गेलो, घराचं लॉक लावून गेलो. हम कॉन्फ्रेंस में गए घर का लॉक लगाकर. आणि ते लॉक नीट लागलं नाही, ते असंच उघडं राहिलं. और वो लगा नहीं ठीक तरह से, वो खुला ही रहा. 8 दिवसांनी आम्ही आलो. 8 दिन के बाद हम आए. शेजारचे म्हटले की तुम्ही गेला 2-3 दिवस दरवाजाचं लॉक उघडच होतं. और बाजू वाले ने बताया कि तुम गए थे बाहर, 2-3 दिन आपका लॉक खुला ही था. आम्हाला वाटलं काही चोरी झाली नाही, आम्ही काही उघडलं नाही, फक्त ते लॉक काढलं, आमचं लॉक लावलं, ही चावी घ्या, तुमचं घर उघडा. हाँ. और उन्होंने देखा और कहा कि हमको लगा कि चोरी वीरी हुआ है कि नहीं, तो हमने वो ताला निकाल दिया और हमारे घर का ताला लगाया और ये लो चाबी, आपके घर खोल दीजिए. We opened that lock and we went inside. हमने लॉक को खोला और अंदर गए. 1 रुपयाचं पण चोरी नाही, काय नाही, काय नाही, काय कुछ भी 1 रुपए की भी चोरी नहीं हुई. हालेलुया. बोले यीशु मसीह की. When your house is surrounded by angels, जब आपका घर स्वर्गदूतों से घिरा हुआ होता है, no thief can enter. कोई भी चोर उसमें घुस नहीं सकता. मी तुम्हाला खरंच सांगतो. मैं सच कहता हूँ. ऐकताय तुम्ही? आप लोग सुन रहे एक हैं? मारवाडी समाजातून एक ब्रदर देवाकडे आले. सत्य घटना सांगतो ये तुम्ही. सच्ची घटी हुई घटना है. मैं आपको बता दूं कि एक मारवाड़ी भाई परमेश्वर के पास जब आया, हालेलुया. त्या भावाच्या घरात चोरी झाली. उसके घर में चोरी हुई. ते गावाकडे गेले, चोरांनी दरोडेखोरांनी घर फोडलं, कपाट तोडलं, सगळं त्यांनी केलं. वो गांव में गए थे तो वो चोर लोगों ने क्या किया, कपाट तोड़ दिया, घर तोड़ दिया, सामान ले लिए. जिथं पैसे ठेवले होते जहाँ पैसे रखे थे, त्या तिजोरीच्या वर त्यांनी बायबल ठेवलं होतं. और जहाँ तिजोरी था उसके ऊपर एक बाइबल रखा हुआ था. त्या चोरांनी अख्खं घर फोडलं, बाजूचे ड्रॉवर तोडले, घरातल्या छोट्या मोठ्या काय वस्तू असतील त्या नेल्या, तिजोरी त्यांनी उघडलीच नाही. और उन्होंने ना सारे पूरे घर को तोड़ फोड़ कर दिया. छोटे छोटे वस्तू लेके गए, पर जिस तिजोरी के ऊपर बाइबल रखी थी वो वहां पर उन्होंने कुछ तोड़ा भी नहीं और कुछ लिया भी नहीं. 1 रुपया त्यांना त्यातला दिसला नाही. देवाने त्यांचे डोळे आंधळे करून टाकले. उनकी आंखों को अंधे करके जिसमें 1 रुपया भी वहां पर दिखा नहीं. हालेलुया. आता तुम्ही जरा नेक्स्ट लेवलला जा. अभी आप दूसरे लेवल पर जाइए, स्तर पर. का चोरांना तुमचं घरच दिसणार नाही. चोर को तुम्हारा घर ही नहीं दिखेगा. हालेलुया. ते येतील आणि बोलतील, अरे ह्याच एरियात आपल्याला टाकायचं होतं, कुठे गेलं ते घर, घरच सापडणार नाही. चोर बोलेंगे अरे अब यही एरिया में किसी घर पे हमें चोरी करना था, वो घर गया कहाँ, दिख ही नहीं रहा है. Can you say amen to that? आमीन. Just stand on your feet. आइए अपने पैर पर खड़े हो जाए. Thank you, Jesus.